السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں روز باخبر کی طرح مجھے مدیہ نفی کو باخبر سویرا میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں اشفاق اسحاق ستی. اور مجھے بہت خوشی ہوئی صبح جب ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی تو میں دل ہی دل میں بہت اچھی ہنسی سے، کیونکہ بھائی پیچھے اتنا ہبڑ دبڑ مچا ہوا نا کہ کیا کرے، وہ میری شکل بھی آتا ہے. چلے جناب، بہت سارا ہے آج کے شو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. پہلے ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈالتے ہیں. پی ٹی آئی کی سندھ حکومت پر تنقید، پیپلز پارٹی نے پنجاب کو ہدف بنا لیا. آصف زرداری سرگرم، رابطے جاری. چودھری پرویز الہی کی سابق صدر سے اہم ملاقات. لاہور میں بلا مقصد گھر سے باہر رہنا حوالات کے اندر رہنے کا سبب بن سکتا ہے. اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے پولیس کا انوکھا اقدام فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. کراچی میں پالتو کتے بھی وبال جان بن گئے. ڈیفنس میں پالتو کتوں نے حملہ کر کے بزرگ شہری کو زخمی کر دیا. معاملہ انسانی جان کا ہے، دھیان دینا ہوگا. جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہنسنا مسکرانا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھی بات ہے اگر کچھ نہ کچھ ہم سے بھی ایسی بات ہو جاتی ہے جسے صبح صبح آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے تو اس میں بری بات کیا. اور آپ کو پتہ ہے صبح صبح میں نے اس ایسی مسچیویس اسمائل کے حوالے سے کسی نے بات نہیں کی، لیکن صبح صبح مسکرانے سے آپ کا دن اچھا گزرتا ہے. اور اسپیسیفکلی اب آپ کو پتہ ہے چینی کمپنی نے اپنے تمام امپلائیز کو کہہ دیا کہ آپ نے صبح آفس میں آنا جب ہے تو ہنستے مسکراتے ہوئے آنا ہے. شرط ہے جناب. بڑی اچھی بات ہے جی، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ مسکرائیں گے تو اس سے ایک پازیٹیو وائب جائے گی اور پازیٹیو وائبز ہوں گی تو پھر آپ مسکرائیں گے، دوسرے لوگوں پر اس کا اثر ہوگا. اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں چینی ویکسین جو آئی تھی اس میں بھی تھوڑا بہت ایسے کوئی ڈراپس ڈال دیتے کہ ہر کوئی زبردستی مسکرا رہا ہوتا. اور سوچیں وہ چہرے جو زندگی میں کبھی نہ مسکرائے ہوں، وہ جب یوں کر کے آپ کے سامنے آ رہے ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھی بات ہے، بڑا اچھا لگے گا. دیکھیں ہنسنا مسکرانا نا بہت اچھی بات ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سامنے والا بھی اسمائل کر رہا ہو نا تو اس کو دیکھ کے آپ کی بھی جتنی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ غائب بھی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی آپ کیوریوسٹی میں آ جاتی ہے کہ کیوں ہنس رہا ہے، اگلا کیوں مسکرا رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ جو کنٹریز ہیں تھائی لینڈ ہو گیا، اس کے علاوہ جو فلپینز یا اس سائڈ کے جو بھی، تو وہاں پر تو یہ کانسیپٹ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے گریٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب میں 2-2.5 سال وہاں پر رہا تو وہاں پر رہنے کے بعد واپس آیا تو جب میں مسکرا رہا ہوتا تھا تو خواتین کو بھی اعتراض ہوتا تھا. نہیں وہ تو آپ جان بوجھ کے مسکرا رہے ہوتے تھے. لیکن اشفاق ہر جگہ ایسا ہی ہے. آپ اگر آپ چاہے ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ لیجیے، امریکہ دیکھ لیجیے، یو کے دیکھ لیجیے، یورپین کنٹریز میں لوگ گریٹ کرتے ہیں، مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. یو نیور نو آپ کی مسکراہٹ سے کسی کا بہت برا دن تھوڑا بہت بہتر ہو جائے تو ضرور مسکرائیے. جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی فیس ویلیو بڑھے گی تو یہ غلط بات نہیں ہے. اب ذرا آگے بڑھتے جناب، کیونکہ آگے ایسی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایک دوسرے کی مسکراہٹیں چھیننے کے پیچھے پڑی ہیں. ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، جو آپس میں ایک دوسرے کو مسلسل تند و تیز بیانات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز بھی رہے ہیں. اور آج کل تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ بالکل آمنے سامنے آ گئی ہیں. اور جب پیپلز پارٹی اور ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو ہم وفاق اور سندھ حکومت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو تناؤ ہے بڑی شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. جناب وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب، انہوں نے کراچی میں سندھ حکومت پر بڑی شدید قسم کی تنقید کی اور کہا کہ آپ نااہل ہیں. درخواست دیں کہ سندھ میں حکومت نہیں کر سکتے، وفاق ٹیک اوور کر لے گا. شہباز گل نے مزید کہا کہ سندھ کے 57,200 ارب میں سے آدھے سے زیادہ زرداری لے اڑے ہیں. زرداری کہہ رہے تھے کہ وفاق یہاں کچھ نہیں کر رہا. اگر آپ وفاق مس کرتے ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن دے دیجئے کہ آپ نااہل ہیں، آپ یہاں حکومت نہیں کر سکتے، وفاق ٹیک اوور کر لے گا اور بڑے اچھے سے خیال رکھ لے گا. اور شہباز گل کے اس سٹیٹمنٹ کے جواب میں مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ شہباز گل کا جواب جیسا جو اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں اس کے جواب میں کوئی شہباز گل جیسی ہی کوئی پرسنالٹی ڈھونڈے. بڑی ہم نے کوشش کی لیکن ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی. خیال ہے کہ شہباز گل کی کسی بات پہ کامنٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک اور شہباز گل 2 چاہیے جس کی تلاش میں نے کہا تھا جاری ہے ہماری. کوئی ایسا ملے، لیکن ایسی چیزیں ہمیں مل نہیں رہی ہیں. ایسی چیزیں ملیں جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنا دماغ استعمال کیے ہوئے ایسی بات کر دیں
जो कोई सुनने के लिए तैयार ना। जनाब, तो आपने सुन लिया कि वज़ीर आला सिंध ने किस तरह से ये बात की, और इसके साथ साथ जो सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है उसकी एक वजह ये भी है कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त पंजाब में सरगर्म हैं और उनकी सियासी सरगर्मियों ने सियासी मौसम मजीद गर्मा दिया है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, जिसके मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। और आसिफ जरदारी ने बाहर आकर खुद परवेज़ इलाही का इस्तकबाल किया। 1 घंटा ये 1-on-1 मुलाकात हुई। बिल्कुल जी, और आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज़ इलाही ने इस अमर पर भी इत्तफाक किया कि आज़ाद अदलिया और जमहूरियत लाजिम व मलजूम है और अदलिया का एहतराम जमहूरियत का जुज़्व है। चौधरी परवेज़ मीडिया से बात किए बगैर बिलावल हाउस से रवाना भी हो गए। ताहम इस मुलाकात को काफ़ी ज़्यादा अहम करार दिया जा रहा है और किस तरीके से हुकूमत इस मुलाकात के हवाले से रिस्पॉन्ड करने जा रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स मुस्लिम लीग काफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग एलाय है, उनसे इस वाले से बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदा बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस हाशमी कावान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा, जो स्पेशली आजकल की सियासी सूरत हाल है उसमें हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को आप लोग कैसे देख रहे हैं? सियासतदानों का आपस में मेल जोल रहता है और मेल मिलाप ही सियासत का हकीकी हुस्न है। हर एक का अपने तौर पे एक नुक्ता नज़र और नज़रिया मुख्तलिफ होता है, लेकिन वो कुछ ज़ाती दुश्मनी या इंतकाम नहीं होता। और सियासत के अंदर जो है वो इसी तरह की मुलाकातें जो है वो अल्टीमेटली जो सियासतदानों के दरमियान मफाहमत, रवादारी और प्यार मोहब्बत को जन्म देती हैं। जहाँ तक हुकूमत और इत्तेहादी जमात के ताल्लुकात हैं और जिस इत्तेहाद को पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर PML काफ की क़यादत और PTI की क़यादत जिस बंधन से ये बंधे हुए ताल्लुकात हैं वो कोई कच्चे धागे नहीं हैं कि एक मुलाकात से टूट जाएंगे। हमारे ताल्लुकात अपने इत्तेहादियों के साथ मजबूत हैं और इंशाअल्लाह हम और हमारे इत्तेहादी मिल के इस बजट के ज़रिए आवाम के दुखों का मदावा करने के लिए जो मरहम लाए हैं उससे ना सिर्फ हम यकजहती के साथ आवाम के मसाइल का तदारक करने में कामयाब होंगे, बल्कि अपोजिशन की जो इस वक्त बिखरी हुई किरची सोच है जो अल्टीमेटली अपोजिशन को दीवार से लगा चुकी है, उनकी अपनी जो कारस्तानी है, तो हुकूमत को वो क्या टफ टाइम देंगे या हुकूमत मुश्किलात का शिकार होगी। आसिफ जरदारी साहब को तो सिंध की फ़िक्र करनी चाहिए क्योंकि पंजाब जो है वो PTI का मजबूत किला है। डॉक्टर, पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो वह एहतजाज के बजाय ऐवान के अंदर तब्दीली की हामी है। क्या हुकूमत की इत्तेहादी जमात से जो राब्ता है आपको लगता है कि इसी सिलसिले की कड़ी हो सकती है? पीपल्स पार्टी का इत्तेहादियों के साथ राब्ता करना इस बात की अक्कासी करता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहती है और पीपल्स पार्टी के पास अपने कंधों में कोई सकत नहीं है और मांगे तांगे के कंधों से तब्दीलियां नहीं आया करती। पहले पीपल्स पार्टी ने जो संगीन गलती की और सियासी तौर पे सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन उनका गढ़ था पंजाब, जहाँ से उन्होंने गठजोड़ करके मुकमका की सियासत करके नून लीग के साथ जो उनकी रवायती हरीफ थी जब उसको हलीफ बनाया तो वो दिन था कि जब पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया हुआ, क्योंकि नून लीग की गोद में पीपल्स पार्टी पल के ये तवक्को करे कि एक तरफ वो मुकमका की सियासत करे, गठजोड़ की सियासत करे और कंधा दे नून लीग के सियासी जनाजे को, तो पंजाब में अवाम जो है वो पीपल्स पार्टी को स्पेस देंगे? यकीनन नहीं। जो नून का इत्तेहादी होगा, जो नून का हलीफ होगा, वो किसी सूरत भी अवाम के
करीब नहीं होगा। लेकिन तमाम इन चीज़ों की बातों के बावजूद भी हम देख रहे हैं डॉक्टर साहिबा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बड़ी कोशिश करी कि किसी तरीके से अपने पंजे मजबूत करे बलूचिस्तान में भी और पंजाब में भी। स्पेसिफिकली जैसे आपने देखे आपके बड़े स्ट्रॉन्ग एलाय से जो उनकी कल मुलाकात हुई साबिक सदर आसिफ ज़रदारी की। सो आपको नहीं लगता कि आगे जाके पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरीके से आपके लिए थ्रेट बन सकती है, आपको टफ टाइम दे सकती है? बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि आपने देखा कि 1200 अरब के हसारे का सूबा जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मेहनत और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर क़यादत जो है इस दफ़ा जो तीसरा बजट इस हुकूमत ने पेश किया है वो 53 बिलियन का सरप्लस बजट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनकी दिए हुए ज़ख्मों पे ना सिर्फ मरहम पट्टी की है बल्कि मईशत को दुरुस्त सिमत में रवां दवां कर दिया। और पंजाब में जो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज हो या ओवरऑल हमारी जो किसान के साथ जुड़ी तरजीहात है, जो मेहनत कश मज़दूर के लिए रिलीफ है और जो पिसे हुए तबकात के लिए पॉलिसीज़ हैं, वो सब इस बात की कासी करती हैं कि पंजाब के अंदर PTI की हुकूमत की पजीराई बढ़ रही है। ठीक, शुक्रिया आपका डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा। और सियासी सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ ऑब्वियसली दे रही थी। तमाम सियासी जमातें इस वक्त एक्टिव दिखाई दे रही हैं, लेकिन आवाम का ज़्यादा एक्टिव रहना और घरों से बाहर निकल के एक्टिव रहना ये ख़तरनाक हो सकता है उनके खुद के लिए। बिल्कुल जी, पंजाब में स्पेसिफिकली लाहौर में अगर आप बिला ज़रूरत एवं बाहर हवा खाने के लिए घर से बाहर निकलें और पुलिस वहां पर मौजूद और पुलिस आपको नोट करी हो, आपकी हरकतों सकनात पे पुलिस ने नजर रखी हो और पुलिस को आप कहीं ना कहीं मशकूक लगे तो पुलिस बगैर वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। और पुलिस का कहना है कि इस इक़दाम से जो नकबजनी की, जो मगिंग की काफ़ी ज़्यादा जो वारदातें होती हैं उनमें कमी भी वाक़या हुई है। तो इसी वाले से मजीद जानेंगे, लाहौर से ज्वाइंट नुमाइंदे बाबर खान, उनसे जानेंगे कि भाई मजीद क्या कुछ हासिल हुआ है इससे। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर, ये बताएगा कि पंजाब पुलिस का ये बड़ा डिफरेंट किस्म का इक़दाम है जो कि उन्होंने लिया है, क्या कुछ फायदा जो है उनको अभी तक हासिल हुआ है इसमें? बिल्कुल मदिया, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल आपने सही फरमाया, पंजाब पुलिस कुछ भी कर सकती है। पंजाब पुलिस है वो चोर को बिल्कुल मदई बना सकती है, कातल को वो मदई बना सकती है, कुछ भी कर सकती है लाहौर पुलिस। लेकिन अब ये हो रहा है कि लाहौरियों के लिए खुशखबरी ये है कि वो बिला वजह घर से बाहर ना निकले। बाहर पुलिस खड़ी है, पुलिस मौजूद है। वो पुलिस पूछती है 109 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर रही है कलंदरे बनाकर। वो पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि जी डकैती चोरी लाहौर में बढ़ गई है और वाकई बहुत ज़्यादा डकैती चोरी बढ़ गई है। नित नए तजर्बे किए जा रहे हैं, अफसरान को तब्दील किया जा रहा है, डॉल्फिन फोर्स बनी हुई है, पीरो फोर्स बनी हुई है। तमाम फोर्सेस होने के बावजूद लाहौर में डकैती और चोरी की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। अब तक लाहौर में डकैती और चोरी की जो वारदातें हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी है। डकैती मज़ामत में मुतअद्दिद अफराद कत्ल हो चुके हैं। पुलिस जो शहरियों को मोटरसाइकिल सवारों को रोकती है, उनसे पूछती है कि जी आपका शनाख्ती कार्ड क्या है। अगर कोई टीन एज है, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ या कोई शनाख्ती कार्ड अपने घर भूल आया, पुलिस उसको थाना लेके जाती है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। मतलब यानी कि बाबर कोई घर से दही लेने के लिए भी निकला हो या फिर अपनी ट्यूशन के लिए भी जा रहा हो और उसके पास उसका शनाख्ती कार्ड ना हो तो फिर पुलिस उसको पकड़ के अंदर कर देगी। राइडिंग अ बाइक तो दे आर सपोज्ड टू हैव अ लाइसेंस, ये होना चाहिए, लाइसेंस तो होना चाहिए। जी यही मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं लाइसेंस होना चाहिए, वो ट्रैफिक पुलिस का काम है। ठीक है, अगर टीनेज बगैर लाइसेंस के मोटर बाइक या गाड़ी चला रहा है उसको पकड़े, उसका चालान करे। लेकिन पंजाब पुलिस की ये कर रही है कि जो घर से सौदा सलब लेने के लिए निकलता है, कोई अपने काम काज के लिए, घर वाले ढूंढते रहते हैं, वो अस्पतालों में ढूंढते हैं कि उनका बच्चा कोई एक्सीडेंट में तो बाबर खान आप भी जरा किसी, मुझे लग रहा है किसी थाने के बाहर ही खड़े होकर इतनी जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ख्याल रखिएगा, पता चले आपको भी आके ले जाएंगे। ये ऐसे ही खड़े हुए थे यहाँ पर। जी बिल्कुल, इनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती है ना, ये किसी ना किसी मुकदमे में पकड़ सकती हैं, कोशिश कर सकती हैं। लेकिन लाहौर पुलिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। कोई डकैती चोरी की वारदातों पर काबू नहीं पाया जा रहा है। पतंगबाजी का सिलसिला होता है, इतवार के रोज़ पतंगबाजी को लाहौर पुलिस बाहर निकलती है कि जी पतंगबाजी ना की जाए। लेकिन अगर कहीं वाक़या होता है पतंग की वजह से, अगर कोई गर्दन पर डोर फिरने से कोई शख्स जाँ बहक होता है, SHO को तब्दील कर दिया जाता है। इसी थाना के एक SHO आसफ जावेद, एक माह कबल इसी इलाका में एक आर्मी का जवान, उसकी गर्दन पर डोर फिरी थी, वो जाँ बहक हो गया था। 1 महीने बाद उसे दोबारा
गार्डन टाउन में तैनात कर दिया गया है। सही। अब अच्छा, लेकिन कहाँ ये की बताएं सलाह बाबर, हुई? जैसे भी आपने बात कही ना कि जो थाने का SHO होता है उसको मौतल कर दिया जाता है। अभी आप जहाँ की पतंगबाजी की भी बात करें तो ये अंदरून लाहौर में बहुत होती है। वहाँ पर हम देखते हैं खुलेआम वहाँ पर दुकानें मौजूद हैं जहाँ पर पिन्ने भी मिलते हैं, जहाँ पर पतंगे भी मिलती हैं, वहाँ पे लोग पतंगबाजी भी करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमने देखा कीमती जानें चली जाती हैं। गोदाम भी मौजूद है, बिल्कुल फैक्ट्री गोदाम मौजूद है। मुझे ये बताएं, इन्होंने जो इतने काम उठा लिए कि जी हमने नकबजनी की वारदातों को रोकना है, हमें डकैतियों को रोकना है, इन्होंने अपना रिस्पॉन्स टाइम बेहतर करने के लिए ऐसी कोई चीज इजाद नहीं की? देखिए रिस्पॉन्स टाइम इनका क्या बेहतर होगा। आगे 15 की जो कॉल चलती थी, अब होता यह है कि अगर कोई वारदात होती है, संगीन वारदात होती है, तो SHO फौरी तौर पर अपने ऑफिसर को बताता है कि जनाब हालात मशकूक है। अच्छा। जब SHO ये बता देगा हालात मशकूक है, कोई SP इन्वेस्टिगेशन, कोई SP जो ऑपरेशन है वो मौके पे नहीं पहुंचता। अच्छा। SHO की बात पे ही ऑफिसर जो है वो पर्चा दर्ज नहीं करते। डकैती की वारदातें भी होती हैं तो वो ये ना 4-4, 5-5 दिन लोग साहिल थानों में आते रहते हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होता। पतंगबाजी के हवाले से आपको बताएं कि बेपनाह गोदाम पुलिस के भरे पड़े हैं, लेकिन पुलिस उनको तलफ नहीं करती। यही जो पतंगे हैं ये दोबारा वापस निकलती हैं, बिल्कुल ऐसे ही लोगों है। तक पहुंचती अच्छा हैं। बाबर, अब जरा मुबैना तौर पर इसी मामले पर वापस आते हैं जिसके तहत हमने आपसे गुफ्तगू शुरू की थी। ये इख्तियार बड़ा खतरनाक हो सकता है इस लिहाज से कि किसी को, आपको ज़रा सा किसी से कोई शख्स पसंद नहीं आ रहा, चलते हुए आपने उठा के उसको बंद कर दिया थाने में। एक तो शहरियों का रिएक्शन क्या है, और जाहिर है कि अगर किसी को पकड़ के ऐसे ले जाया जाए तो उसकी ज़मानत का तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि वारंट तो आपके पास है नहीं, आपने बस पकड़ के ले गए उसको। होता क्या है उसके बाद? देखिए जी, ज़मानत का उसका तरीकाकार ये है कि कलंदरे तैयार किए जाते हैं पुलिस की तरफ से 55-109 के। अगले दिन जाते ही अदालत में उसकी ज़मानत हो जाती है। ज़मानत के लिए तकलीफ होती है, घर वालों को आना पड़ता है, वकला को पैसे देने पड़ते हैं, मुचल के तैयार करवानी पड़ती हैं। एक छोटी सी गलती के ID कार्ड अपना घर भूल आया, ठीक है। पुलिस जो है, पुलिस का यही काम है कि पुलिस बिला वजह पकड़ती है, क्योंकि पहले लोग कोरोना की वजह से सताए हुए हैं, कारोबार उनके तबाह बर्बाद हो चुके हैं, और लोग जो है ना वो जब घरों से बाहर निकलते हैं तो ID कार्ड अगर घर भूला है तो पुलिस बाबर, बस इस तमाम सिचुएशन में तो हमें यही लगता है कि जी हम तो फिर लोगों के लिए दुआई कर सकते हैं, लोगों के अपने लिए दुआई कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये भी देखा, लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों को पकड़ा जाए तो बाद में उनको कुछ ना चाहे पापड़ के पैसे लेकर उनको घर वापस ना छोड़ दिया जाए, ये कमाई का जरिया ना बन जाए। बहुत शुक्रिया जी। बाबर हमारे नुमाइंदे लाहौर में हमें तमाम सिचुएशन से आगाह कर रहे थे। मतलब एक कोई होनी चाहिए जिसमें आपका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो और आप वैसे आपकी सर्विलेंस अच्छी बढ़ सके। दुनिया में रिस्पॉन्स टाइम बहुत मैटर करता है। आप किसी भी 911 पर कॉल करें, उनका एक रिस्पॉन्स टाइम होता है, उसके अंदर वो पहुंचते हैं, क्योंकि एक एक लम्हा कीमती होता है। यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम किस हवाले से, कोई सड़क पे घूम रहा है शहरी, हो सकता है अपनी फैमिली के साथ हो, कोई बात हो तो जनाब उसके बाद आप पकड़ के ले जाएं, उसके बाद पैसे पकड़ें और उसके बाद छोड़ दें। तो बहरहाल बड़े मसाइल मौजूद हैं। शहरी क़यादत के कुछ मसाइल पर बात करते हैं। आवारा कुत्ते वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं और शहरियों को तंग करते रहते हैं। मतलब आप सोचे मदिया कि चलती गाड़ी में मैं घबरा जाता हूँ अगर 3-4 कुत्ते साथ आके भागना शुरू हो जाएं। तो वो जनाब ऐसे गैंग अप होके, और उसके बाद अगर ये पालतू कुत्ते ऐसा काम करें तो फिर सोचें आपका हाल क्या होगा। बिल्कुल जी, ये मतलब हमने ऐसे ही देखा है, फुटेजेस हमारे सामने आई है और ये फुटेजेस थी वीकेंड पे। हमने देखा कि 2 पालतू कुत्तों ने एक शहरी पे, एक बुजुर्ग शहरी पे कर दिया हमला। अब आप ये देख सकते हैं कि इनके साथ जो इनको घुमाने फिराने वाला है वो शख्स भी साथ जा रहा है, बट ये जो दोनों पालतू कुत्ते हैं, जो तगड़े अच्छे बड़े साइज के कुत्ते हैं, इनके गले में कोई पट्टा नहीं है, दे आर अनलीश्ड। और उसके बाद कोई, हम देखते हैं कि सड़क पे कोई भी आता है, जैसे आपने देखा कि जो बुजुर्ग शहरी हैं ये सड़क से गुजरे थे जनाब, और उस पर भाग के इन दोनों कुत्तों ने हमला किया। और ये कुत्ते इतने स्ट्रांग थे कि जो उनके साथ उनका केयर टेकर था, जो उनके साथ उनको घुमाने फिराने के लिए भी निकला हुआ था, वो खुद जनाब वो कुत्तों को कंट्रोल नहीं कर सका। लेकिन बदकिस्मती जनाब ये कि जिस पर अटैक किया था ही हिमसेल्फ, वो लॉयर भी थे, मिर्जा अख्तर अली, उसके बाद फिर उन्होंने मुकदमा भी सवाल दर्ज किया और अब 2 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं सवाल। जी बिल्कुल, और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तार किनको किया गया है? क्या वो जो मुलाजमीन थे वहां पर मौजूद थे उनको गिरफ्तार किया गया है, या मालिक जिसकी जिम्मेदारी है कि अगर आप कोई पेट रख रहे हैं और आप उसको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं तो आप उसको इस तरह से रखें कि दूसरों की वेलबींग का भी ख्याल रहे और इस तरह के वाक़यात रोनुमा ना हो। तो नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, बराह रास्त उनसे बात करते हैं। नज़ीर शाह, ज़रा बताइएगा कि ये जो मामला हुआ है कुत्तों के काटने का, उसके बाद अभी उन साहब की हालत कैसी है, और दूसरा ये है कि क्या पुलिस की जानिब से क्या बस रस्मी कार्रवाई की गई है?
دیکھیں اشفاق، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو 16 جون کو کراچی ڈیفنس فیز 6 خیابان راحت اور سحر کے بیچ میں پیش آیا تھا، جس کے اندر تقریباً 70 سال کے قریب ان کی وکیل جو اختر علی ہے، ان کی عمر ہے، یہ مارننگ واک کے لیے جا رہے تھے کہ گھر کے باہر کھلے ہوئے 2 کتے جو میرے خیال میں جرمن شیفرڈ یا السیشن اس نسل کے کتے تھے، جو کہ انتہائی خطرناک کتے کہلاتے ہیں، جو کسی بھی انسان کی جان بھی لے سکتے ہیں. اور انہوں نے جیسے ہی ان کو واک کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے اوپر پل پڑے، اور نہ صرف انہوں نے حملہ کیا بلکہ ان کو باقاعدہ پلٹیاں دلوائی، کلابازیاں کھلوائی. ایک شخص کے اوپر 2 کتے جب حملہ کر رہے ہیں اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے جس حد تک انہوں نے کوشش کی کر سکے، اس کے بعد انہوں نے ان کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑ دیا. لیکن اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ جو ان کے نگران تھے انہوں نے کوئی ایسی خاص کوشش نہیں کی کہ ان کو بچاتے، بلکہ کوئی 2 منٹ تک وہ تقریباً ان کو بھگوڑتے رہے، اور اس کے بعد وہ اپنے کتے لے کر اپنے بنگلے کے اندر چلے گئے اور ان کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے. اور ایک خدا ترس شخص نے ان کو اٹھایا اور ان کو پھر اسپتال منتقل کیا، جس کے بعد پھر ان کو انہوں نے درخشاں تھانے میں اس کا مقدمہ کروایا. یہ اس کو دیکھ کے ہی ہم اتنے ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آج تو جناب یہ لائر تھے، یہ میرے والد صاحب بھی ہو سکتے ہیں، ایسے واک کے لیے نکلے اور ان پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے. تو کوئی مطلب کوئی بڑا مقدمہ درج نہیں کیا گیا جس کے یہ کتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم جب مثالیں دینے کو آتے ہیں، ہم ویسٹرن کنٹریز کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں پر اگر چھوٹا سا بھی ایسا کوئی حادثہ ہو جائے نا تو پتہ نہیں کتنا کچھ ان کا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کتے بھی ان کے گھر میں، یہ بھی اپنے گھر میں، جو بیچارے صرف گھمانے پھرانے کے لیے نکلے ہوئے تھے وہ حوالات میں ہیں. دیکھیں مدیہ 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں کتوں کی یا کسی بھی جانور کی. ایک ہوتا ہے اسٹرے ڈاگز جو مطلب آوارہ کتے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پالتو. تو اسی طرح جانور دیگر جس طرح شیروں کی بھی ہم نے حملے دیکھے، گلبرگ کے علاقے میں بچے پہ شیر نے حملہ کر دیا، تو سیکشن اس پر بھی 289 لگی تھی اور اس پر بھی 289 لگی ہے. اور 337 کا مطلب ہے زخمی کرنا. تو 289 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا پالتو جانور جو کسی شہری کو زخمی کرے، نقصان پہنچائے. تو یہ کوئی بہت زیادہ ایسی خاص سیکشن نہیں ہے اس سلسلے میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں نذیر شاہ جو مقدمہ درج ہوتا ہے وہ اکثر کیئر ٹیکرز پر کیوں ہوتا ہے، ملازمین پر کیوں ہوتا ہے، کتے کے مالک پر کیوں نہیں ہوتا، یا جس کا بھی جانور ہو اس کے خلاف کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں دیکھیں اشفاق، اس کے اندر جو مالک ہیں، دونوں مالک جو باپ اور بیٹے ہیں، ان دونوں نے اس کی باقاعدہ ضمانت کروا لی ہے. ان کا نام ہمایوں ہے اور ان کے بیٹے نے ضمانت کروائی ہے اور انہوں نے ضمانت کروائی ہے. 2 ملازم ضمانت کروا نہیں سکے، پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے. اور مرزا اختر سے جب ہماری بات ہوئی ہے، آپ بلیو کریں اتنا دردناک انہوں نے جو سین بیان کیا ہے. 5.5 گھنٹے کا تو صرف ان کا آپریشن ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا وہ کورونا سروائیور ہے. وہ ایک شخص جو اپنی صحت بنانے کے لیے واک کر رہا ہے تاکہ وہ ہیلدی رہ سکے، کورونا کو شکست دے چکے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح چلتے پھرتے اچانک سے ایک مصیبت آ پڑتی ہے، جس کے خلاف جو وکلا برادری ہے ان میں بھی سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے. اور یہ 2 مرتبہ ان کی ضمانت کینسل ہو چکی ہے جو یہ ملازمین ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے کہ اگر یہ ان کو اٹھا کر اور بنانا بھی چاہیے کیونکہ کل انہی کتوں کے اٹیک سے کوئی اور شخص، آپ یہ سوچیں کہ چلے 5 گھنٹے کا تو آپریشن ہے، جو ٹراما ہے وہ ٹراما کیسے جائے گا؟ اس وقت آپ یہ دیکھیں اس عمر کے آدمی کو، اب دل بہت انسان کا ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے. ہم جیسا کوئی شخص وہاں پر جا رہا ہو تو اس کو بالکل لالے پڑ جائے جان کے، آپ کا ہارٹ اٹیک آپ کو ہو جائے، آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے. یہ کتے کا کاٹنا تو اتنا بڑا کتا کسی جوان کی طرف اگر آئے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ اسٹیئرنگ چھوڑ دیتا ہے. اگر گاڑی میں ہو، موٹر سائیکل پر ہو تو وہ چاہتا ہے کہ موٹر سائیکل چھوڑ نذیر شاہ آپ یہاں پر رپورٹنگ کریں، آپ کے پیچھے آئے یا میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہاں پر نظر آئے تو ہم دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جائیں. مطلب واقعی ایک ٹیرر تو ہے. بہت شکریہ جی نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ نہایت ہی انفارچونیٹ بات ہے. یہ تو دیکھیے بزرگ شہری تھے، ان پہ اٹیک کیا گیا، اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصہ یہ کوئی خاتون جو ہے وہ وہاں سے گزر رہی ہوتی، یہ ان پہ اٹیک کر دیتا یا کسی بچی پہ اٹیک کرتی تو کیا جس قسم کا حملہ ان بڑے بڑے کتوں نے اس بزرگ شہری پہ کیا وہ بچے پہ کرتے تو کیا وہ بچہ سہ سکتا اس کو؟ سو میرے خیال سے یہاں پہ سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے، قوانین ہونے چاہیے تاکہ اگلا سوچے کہ ہم اتنے بڑے اگر اپنے پاس ڈاگ رکھ رہے ہیں، پیٹ رکھ رہے ہیں تو ان کی حفاظت بھی ہمارا ذمہ ہے، اور ان سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے وہ بھی ہمارا ذمہ ہے. اور اگر آپ کے کتے کی وجہ سے کسی کو کچھ ہو گیا تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہ ہونا چاہیے. مدیہ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گی، مطلب نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں چھوڑیں گے، بالکل نہیں چھوڑیں گے. بریک لے لیتے ہیں جی جناب. تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. نہیں ہے، دکھ ہے.
क्योंकि भाई पीएसएल में एक टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी विच वॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड, बहुत अच्छा खेल रही थी और उसके बाद एकदम हम उसको देखते हैं कि वो जब पीएसएल के जो फाइनल से जब आउट हो जाए तो दुख तो थोड़ा बहुत होता है कि यार टीम अच्छी खेल रही थी। देखिए मेरा इस्लामाबाद से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं, आप तो इस्लामाबाद के रहते हैं, आपकी लुडियां ब्रेक में जो है वो हम लेकिन देख रहे मैं थे। बेसिकली ये चाह रहा था कि इस्लामाबाद जो है वो जो टीम अच्छा खेले जाए, ऑब्वियसली अगर यू गॉट टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी इस लेवल पे, खास तौर पर जब आप एलिमिनेटर्स पर आ जाएं, वैसे सारे मैचेस आप जीतते रहे, आप पॉइंट्स टेबल पर भले टॉप पे हों, लेकिन जब बात आए कर दिखाने की तो उस वक्त अगर आप ना कर पाए तो बहरहाल होता है। अच्छा ये टारगेट ही अच्छा नहीं है, ये जो 175-76 होता है ना, इसमें मुझे कतन भरोसा नहीं होता है, मुझे लगता है कि ये गेम खराब होगा। कराची किंग्स के साथ भी यही हुआ था। गेम खराब सिर्फ और सिर्फ एक टीम के लिए होता है, जिसको शायद हम सपोर्ट कर रहे जी, ऐसा ही है। उसके लिए खराब होता है। कल जनाब, कल जो मैच हुआ उसमें पेशावर ज़ल्मी ने कर दिया बीट इस्लामाबाद यूनाइटेड को और अब पेशावर ज़ल्मी पहुंच गया है सीधा फाइनल में। और ये दूसरी बार वैसे देखा जाए पेशावर ज़ल्मी क्योंकि बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, मुझे लग रहा है वैसे इशफाक कि इस बार का जो फाइनल मैच होने जा रहा है वो होगा पेशावर ज़ल्मी एंड ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान जीत जाए इस बार। एक प्लेयर हैं जिन्होंने कराची की शिकस्त में भी अपना किरदार अदा किया, वो हैं जी ज़ज़ाई। उन्होंने इस दफ़ा 67 रन बनाए हैं, पहले गालिबन 77 रन या 76 रन इस तरह से कोई बनाए थे, और आप ये देखें कि वो मुसलसल चल रहे हैं। कराची किंग्स का स्कोर भी तकरीबन ऐसा ही था और इन्होंने भी यही स्कोर किया, तो आपको इनको कंट्रोल करना होगा। ये जो अफगान प्लेयर है ना, ही इज प्लेइंग रियली वेल, और आप जब तक उनको कंटेन नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल जी। हज़रतुल्लाह ज़ई जो है ये बड़ा जनाब बड़ी मुश्किल जो है बन के साबित हो रहे हैं तमाम। अब किसको सपोर्ट करेंगे मदिया आप? मैं जनाब ये हज़रतुल्लाह ज़ई जहां है मुझे लग रहा है मुझे उसी को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। या और मैं जो टीम जीत रही है उसको सपोर्ट करूंगा। पाकिस्तान का एक अमूमी रवैया, लेकिन जो हुकूमत बनाए उसके साथ रहो, और उसके जो बाद जीत जाए उसका साथ दो। और उसके बाद एक और रवैया, तुम जीतो या हारो। जीत तो क्रिकेट की हुई है ना। हाँ। एंड में तो यही कहना होता है ना कि जीत तो क्रिकेट की हुई है। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली लेकिन के लिए एक बड़ा कदम ऑब्वियसली पीएसएल है, तो लेकिन बाकी जीत बाकी क्रिकेट की हुई है। ठीक है, इस बार पाकिस्तान में मैदान वैसे नहीं सजे जैसे सजने चाहिए थे। ऑफ कोर्स कोविड से पहले हमने देखा पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे, लेकिन फिर जब कोविड 3 का जो दोबारा से ब्रेक डाउन हुआ तो उसके बाद बड़ी मुश्किलात हुई, बड़ी अल्लाह अल्लाह करके दोबारा से मैच जो है ये अबू धाबी में शुरू हुए। जब शुरू हुए देखिए उससे पहले भी कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, पता ही नहीं था कि मैचेस दोबारा से होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फाइनली मैचेस हुए और इंशाल्लाह 24 को होगा फाइनल, जो कि अब हो रहा है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के बीच। तो पेशावर ज़ल्मी मेरी फेवरेट है इस वक्त, लेकिन नहीं पेशावर नहीं है। वजह उसकी ये है कि मुल्तान सुल्तान में है रिजवान, और रिजवान ने क्या अपनी बैटिंग से खुद को मनवाया है। तो बाबर आजम के बाद जो दूसरे प्लेयर मेरे फेवरेट हैं वो हैं रिजवान, और रिजवान जो हैं वो जाहिर है कि ही इज देयर और ऑब्वियसली आई एम श्योर कि ही इज गोना परफॉर्म। पीएसएल में ये बड़ा फायदा होता है कि जो आपके प्लेयर्स हैं ना वो खुलकर सामने आते हैं, फिर आपको पता होता है कि हाँ भी कौन कौन सा प्लेयर हमारे पास है। नहीं पर्सनल लाइफ नहीं, क्रिकेट की लाइफ में क्या दिमाग में बातें चल रही हैं आपकी। चलें जनाब, ये तो होगी पीएसएल की बात, और पीएसएल के जैसे जैसे आगे भी मैचेस होंगे। ऑफ कोर्स अब रह कितने गए हैं, कल आखिरी दिन है, इंशाल्लाह फाइनल होने जा रहा है, तो कल देख लेंगे कि कल कौन जीते हैं। अभी जनाब आपको बताएं और इनफैक्टली आपकी हम मुलाकात कराएं एक ऐसे मास्टर डिग्री याफ्ता रिक्शा ड्राइवर रिजवान खान से जिन्होंने अपनी माजूरी को कभी भी अपनी मजबूरी नहीं बनने दी। बिल्कुल, और इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं बेनिश सिद्दीका। बहुत मुश्किलात मुझे पेश आई, बात व्हीलचेयर भी नहीं होती थी और मैं रोडिंग करके चलता था। पढ़ लोगे तो कुछ हो जाएगा तुम्हारा। अब मैंने पढ़ लिया लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। क्या आप उन लोगों को सता रहे जो बेचारे जिंदगी के सताए? शर्म आनी चाहिए आपको। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। रिजवान खान मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो माजूरी को मजबूरी नहीं बनाते। पोलियो ने उम्र भर की माजूरी मुकद्दर बनाए भी मास्टर्स मुकम्मल कर लिया। बहुत मुश्किलात मुझे पेश आई। उस जमाने में मेरे पास व्हीलचेयर भी नहीं होती थी और मैं रोडिंग करके चलता था। यूनिवर्सिटी कभी आप जाएंगे एग्जाम देने तो आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर जो पड़ा है वो वहाँ पर है आपका रूम, और इतनी स्पेस से आपको कैसे जाना है ये आप जानते हैं। सरकारी मुलाजमत के लिए दर दर भटके लेकिन नौकरी ना मिली। मुझे उम्मीद दिलाई गई थी बचपन से, यार पढ़ लोगे तो कुछ हो जाएगा तुम्हारा, पढ़ लोगे तो कुछ हो जाएगा। अब मैंने पढ़ लिया लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। माजूरी कोटे पर मुलाजमत के लिए बहुत बार इम्तिहान में शरीक हुए लेकिन हालात ने दिल बर्दाश्त कर दिया। जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाया था फर्स्ट पे बैठ के पेपर कर रहे थे, इतना अजीब माहौल था, वो खाना पूरी हो रही थी। आप उन लोगों को सता रहे जो बेचारे जिंदगी के सताए, उनको सताए आप लोग। शर्म आनी चाहिए आपको।
आप हमसे ज़्यादा माजूर हैं, हमसे बड़े माजूर हैं। एक कंप्यूटर सेंटर में मुलाजमत मिली जो कोरोना के बाइस बंद हो गया। बुलंद हौसला रिजवान ने हिम्मत न हारी और फलाही इदारे की जानिब से दिया गया हाथ से चलने वाला खुसूसी रक्षा चलाना शुरू कर दिया। यही नहीं, रिजवान अपने जैसे खुसूसी अफराद के लिए फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ बिनी सिद्दीका, ARY न्यूज़, कराची। ये जो रिजवान है ना, ये आपके मेरे लिए हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए, एक तो मेरे ख्याल से माजूरी का वर्ड हमें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ उनके पास नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको और इतनी ज़्यादा सलाहियत दे दी है। किसी के अंदर ये सलाहियत हो ना कि आपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना है, इससे बड़ी भी नेमत कोई नहीं है। और डिसेबल्ड का वर्ड भी मैं कहता हूँ कि वो यूज़ करना इनके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि ये वो कुछ कर रहे हैं। हमारे सर में दर्द हो, हमारे जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो, हम ऑफिस आने से कतराते हैं, लेकिन ये रोज़ाना की बुनियाद पर इस जो बज़ाहिर माजूरी है उसको अपनी मजबूरी नहीं बनने देते और सारी दुनिया को बताते हैं, और विद सच अ पॉजिटिव आउटकम के हाँ जी। और देखें ना, बड़े आराम से अपने लिए, अपने घर वालों के लिए एक बहुत ही बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा है वो लोग जिनके हाथ पैर सलामत होते हैं, वो भी हर वक्त किसी ना किसी चीज़ के बारे में शिकायत कर रहे थे, जी हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। वो देखिए, उन्होंने रिक्शा भी ऐसा बनवाया जो कि हाथ से चलाते हैं। जी, और आप देखें कि लोग इस माशरे में, अगर आप गली मोहल्लों में, सड़कों में देखें कि वहाँ पर उनको रीज़न चाहिए होता है हाथ फैलाने के लिए, और ऐसे में एक शख्स जो है वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख रहा है और कितनी पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंटली वो जाते हैं। हालांकि उनके लिए आसान नहीं होता होगा ये, लेकिन बहरहाल हैट्स ऑफ टू यू सर, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आप दूसरे लोगों के लिए एक रोशन मिसाल। बिल्कुल रिजवान साहब, आप हमारे हीरो हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी में लोगों का मिजाज मीठा रखने के लिए हम देखते हैं कि पूरे मार्केट्स में हम घर से जब भी बाहर निकले तो हर तरफ आम ही आम नजर आता है, तरह तरह के आम, उसमें लंगड़ा, चौसा, उसके अलावा दशहरी, अनवर अटोल और दीगर कई अक़साम के जो आम हैं उनकी महक हर सू रची होती है। मतलब हर रेड़ी पर देखें तो उधर भी आम, उधर भी आम, उधर भी आम। मेरे लिए तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल दुनिया में आम की पैदावार सबसे पहले कहाँ हुई और बर्रे सगीर में ये किस तरह पहुंचा, और इसी हवाले से चिन्योट से हमारे नुमाइंदे हैं अमीर उमर चमन साहब, जो कि बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा देखिए। आम गर्म इलाकों में पैदा होने वाला रसदार और गोदेदार फल है जो मुख्तलिफ रंग और बैजरी शक्ल में नजर आता है। इसे पकने पर खाया जाता है और कच्चे में इसका अचार बनाया जाता है। इसकी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों अक़साम हैं और बड़े सगीर में इसे सब फलों का राजा कहा जाता है। आम पाकिस्तान, हिंदुस्तान और फिलिपाइन का कौमी फल है और बांग्लादेश का कौमी दरख्त भी है। अंग्रेजी का लफ्ज मैंगो तामिल जबान के लफ्ज मनीके या मलयालम लफ्ज मांगा से मुश्तक है। जब पुर्तगाली ताजर जनूबी हिंद में आबाद हुए तो उन्होंने मांगा लफ्ज का इस्तेमाल किया, और फिर 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी में जब बरतानवी ताजरों ने जनूबी हिंद से तिजारत शुरू की तो ये लफ्ज बदलकर मैंगो हो गया। पुर्तगालियों ने 15वीं सदी में इसे दुनिया में तिजारत के जरिए इसे फैलाया और आज ये दुनिया के कई मुल्कों का कौमी फल है। और बुद्ध मत के लिए ये मुकद्दस फल है, क्योंकि बुद्ध मत की हिस्ट्री के मुताबिक महात्मा बुद्ध जी ने इस दरख्त की खुशबू और इसकी छांव में निर्वाण हासिल किया। डॉक्टर्स के मुताबिक एक प्याली आम में तकरीबन 60 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विसेज का कहना है कि 19 से 64 साल के आदमी के लिए एक दिन में 40 मिलीग्राम विटामिन सी काफी है। इसमें विटामिन भी हैं, कैल्शियम भी है, मिनरल्स भी हैं और फाइबर्स भी हैं जो कि मैदे को ठीक रखते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान को मैंगो डिप्लोमेसी का बानी और मौजद कहा जाता है। पाकिस्तानी आम जहां लज्जत के एतबार से बड़े मशहूर हैं, वहीं यहाँ के लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़, चिन्योट। बहुत शुक्रिया जी। और अमीर उमर चमन ने तो मतलब वैसे तो हम आम के हवाले से इतनी रिपोर्ट्स देखते हैं, लेकिन आज ये भी पता चल गया कि हाँ भाई, मतलब ये बड़े सगीर तक ये आम कैसे पहुंचा और किन अगर हम मज़ाहिब में देखें तो इसको बड़ा स्पेशल भी समझा जाता है, मुकद्दस समझा जाता है। और साथ ही साथ उसके अंदर कौन कौन से विटामिन मौजूद हैं, कौन कौन सी अहम चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए मुफीद होती हैं। तो जनाब, अब क्या हमने तस्करा करना है मदीना? अब जनाब हम बात करेंगे, अशफाक आपने देखा होगा पहले देयर वाज एन एज स्पेसिफिकली जिसके बारे में कहा जाता था या कुछ बीमारियों से मंसूब किया जाता था कि सर में दर्द होती है। हाँ जी। लेकिन अब
आधे सर का दर्द इतना कॉमन हो गया कि कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे भी इस हवाले से शिकायत कर रहे होते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि क्या ये नॉर्मल हेडेक है, ये नॉर्मल सर का दर्द है, या फिर ये माइग्रेन है। और अगर माइग्रेन हो जाए तो इशफाक इसके बारे में कहा जाता है कि जी माइग्रेन का कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, बस आपको मेडिसिन खानी है, देयर इज नो क्योर। और जाहिर है कि उसके अंदर फिर बहुत से उसके ट्रिगर्स होते हैं, तेज रोशनी भी उसकी एक वजह होती है। कई लोगों को स्ट्रेस की वजह से होता है, और स्ट्रेस पर जब कंट्रोल नहीं क्या करते हैं, आप काबू नहीं पाते। हाँ, मेरे भी स्ट्रेस लेवल इस वक्त बढ़ गया तो मेरे से बोला नहीं जा रहा है। बहरहाल इसके अलावा जनाब और बहुत से रीजंस होते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम एक्सपर्टीज अपनी शो करें, जो कि नहीं है। तो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हैं, और उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि ये बहुत बार आपसे ये सवाल होता होगा कि ये जो माइग्रेन है क्या, ये क्यों होता है और ये क्यों क्योरेबल नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, माइग्रेन जिसको उर्फ़ आम में आधे सर का दर्द भी कहते हैं, और उर्दू अगर आप शकील कह लें तो दर्द शकीका भी कहते हैं, तो ये हमारे माशरे में और बल्कि दुनिया भर में सबसे कॉमन है, सबसे आम दर्द की किस्म है। और अगर एक बहुत ही, क्योंकि पाकिस्तान के में कोई पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी नहीं है तो जिसकी बुनियाद पे हम एक एग्जैक्ट आदाद शुमार बता सकें, लेकिन एक महदूद या बहुत ही मोहताज जो हमारे हॉस्पिटल्स में ट्रिगर मरीज़ आते हैं, तो हम ये समझते हैं 15% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी 15% जो भी दर्द होता है उसमें माइग्रेन सबसे कॉमनेस्ट है, 50%। यानी हम समझते हैं कि तकरीबन 3 से 4 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है जिनको माइग्रेनस पेन होता है। और ये सबसे ज़्यादा यानी पाया जाने वाला सर दर्द है, सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली जितना ये कॉमन है उतना ये अनकॉमन टू डायग्नोस्ड है, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो फिर कई मरीज़ जो हैं ENT के पास चले जाते हैं, कई मरीज़ जो हैं GPs के पास आते जाते रहते हैं। अलामात क्या होती हैं इसकी? हाँ, देखें, अलामात इसकी मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो कॉमनेस्ट हैं वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। देखें, एक तो जिससे मैंने कहा हुर्फ़ आम में आधे सर का दर्द कहते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि नाप के आधे सर का दर्द ही हो, इट कुड बी हाफ हेयर या पूरे में भी फैल जाता है। लेकिन आम तौर पे ये कुछ मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी आंख से दर्द शुरू होता है और यहाँ भारीपन महसूस, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे आधे में और फैल जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमारी कनपटी से ये शुरू होता है या हमारे पीछे सर के दर्द, और ये फिर फैलते फैलते आगे आ जाता है। तो एक तो नंबर 1 उसकी अलामत है दर्द, यानी सर दर्द। दूसरी चीज़ इसके साथ साथ ये होता है, हर मरीज़ के साथ कुछ चीज़ें मुख्तलिफ जुड़ी होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, जिस तरह आप अपने इंट्रो में भी कहा, कि तेज़ रोशनी से, चाहे वो सूरज की हो, चाहे वो ये लाइट्स हो, जो वट एवर, तेज़ आवाज़ से, वट एवर द साउंड इज़। और आजकल तो एक एडिशनल फिनोमेना कर लें कि कांस्टेंट, ये जैसे कहते हैं ना कि ये जो स्क्रीन लाइट्स, इसकी वजह से ये एक ट्रिगर फैक्टर है। इसके साथ साथ नौजिया, जो मतलाहट कहते हैं, इवन वोमिटिंग पेशेंट्स को जाती है, और तेज़ खुशबू या तेज़ बदबू, शुगर लेवल भी। एवरी पेशेंट इज अ डिफरेंट पेशेंट, और हर मरीज की अलामत डिफरेंट। लेकिन जो कॉमन अलामत हैं वो आधे सर का दर्द हो सकता है, मतलाहट हो सकती है। एक चीज़ ये है कि ये तो आपने अलामत बता दी, इसके अलावा कोई साइंटिफिकली या कोई स्कैन्स वगैरह से पता चलता है कि ब्रेन के अंदर जो एक मूवमेंट है वो डिफरेंट हो रही है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारे तोहमात डेवलप हैं। देखें, माइग्रेन जो है प्योर क्लिनिकल डायग्नोसिस है। यानी ये मरीज जो अपने नॉलेज को बात बताता है, उसकी बुनियाद पर तशख़ीस होती है। जो इसके टेस्ट होते हैं, जो इसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि रूल आउट करते हैं कोई अदर चीज़ ना हो, अदर ख़तरनाक, वो कोई ट्यूमर है या कोई और ब्रेन के अंदर मेलफॉर्मेशंस हैं, कोई और चीज़ ना हो। टेस्ट इसलिए नहीं की जाते हैं कि उसमें हम ये तशख़ीस करें कि माइग्रेन है या माइग्रेन नहीं है। टेस्ट इसलिए किए जाते हैं कि कोई और चीज़, यानी कि ये कॉमन है, शदीद दर्द देता है, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि ये जानलेवा नहीं है उसका? नहीं, जानलेवा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, ये जिस तरह दुनिया भर में चीज़ें जो है ना, वो एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक से ऐसे रुक जाती हैं। यानी अगर कोई फर्द बार बार माइग्रेनस के पेन है तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, और उसकी प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है तो इवेंचुअली उसका वर्क
اور اس کی تمام چیزیں تو اسے چھٹی کرے گا, اسکول نہیں جائے گا, جاب پہ نہیں جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جسے کہتے ہیں نا YLD یعنی کہ ایئر لاسٹ ڈیز, تو وہ تو بہت زیادہ اس کو کیور کوئی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب اس کا. دیکھیں بالکل ہے. دیکھیں ہر مریض کو پہلے تو پراپر معالج کے ذریعے جانچنا چاہیے کہ اس کی علامات کیا کیا ہیں. جیسے ہم نے موٹی موٹی علامات بتائیں یقیناً ہوتی ہیں, لیکن ہر مریض میں ڈفرینٹ علامات. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم اگر نیند نہیں کریں پراپر تو ہمیں سر درد ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ میں صبح کی, کچھ لوگ چائے میں نہیں پیوں تو مجھے سر درد ہو جاتا ہے, کئی لوگ اس طرح, ہر ایک کا مطلب ڈفرینٹ. لیکن ہسٹری از ویری ویری امپورٹنٹ ان ڈائگنوزنگ, تشخیص مائیگرین میں, اور اس ہسٹری کی بنیاد پر آپ کو وہ تمام علامات اپنا چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, یعنی کہ پریونشن کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر فرض کریں کوئی شخص جیسے سپوز مدیحہ آئی ہیں, ان کو مائیگرین کی شکایت ہے, شدید سر میں درد ہو رہا ہے, اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان کے سمٹمز کو ریلیف؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک ہوتا ہے ایکیوٹ ٹریٹمنٹ یعنی شدید سر درد کے دوران کا ٹریٹمنٹ, ایک ہوتا ہے پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ کہ کسی مریض کو 4 سے 5 سے زیادہ پر منتھ مائیگرین کے اٹیک ہو رہے ہیں, تو اس کو آپ پھر کوشش کریں گے کہ وہ, کیونکہ دیکھیں 5-6 دن اگر کسی کے ہو رہے ہیں تو ایک آدھ دن ریزیڈیول اس کا افیکٹ ہوگا, اس کے نتیجے میں تو اس کا 8-10 دن گئے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مریض جس کے 4 سے 5 اٹیک پر منتھ ہو رہے ہیں اس کو تو آپ پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ بتائیں گے. پہلا حصہ ہے ایکیوٹ ٹریٹمنٹ کا. ایکیوٹ ٹریٹمنٹ کی دوائیں موجود ہیں, لیکن اس کے اندر تو بہت سارے ٹرپٹینز ہیں, بہت سارے پین کلرز ہیں جو اوور دا کاؤنٹر. جی بالکل ملتے ہیں, لیکن اوور دا کاؤنٹر ہم نہیں ایڈوائز کریں گے. ہم کہیں گے آپ اپنے معالج سے, نیورولوجسٹ سے دکھائیں, اس کے ذریعے اس بات کی تشخیص کرائیں, اس کو کنفرم, کیونکہ اوور دا کاؤنٹر لینے سے جو ہمارے ہاں جو سب سے کامن درد ہے, جو کہ آج کے موضوع گفتگو نہیں ہے, وہ ہے میڈیکیشن اوور یوز ہیڈ ایک, یعنی کہ دواؤں کا بہت زیادہ استعمال کے نتیجے میں سر. کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم خود بھی سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں, جو بہت بڑی ریزن ہے. اچھا کچھ لوگ برف چبانا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں ریلیف ملتا ہے. یہ تو خیر اس کے تو مجھے کچھ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے, لیکن یہ لوگ ایم ہی اپنی طرف سے ٹوٹ کے مار رہے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے جس سے کسی کو سکون مل جائے, جس چیز سے بھی امپورٹنٹ چیز ایکیوٹ ٹریٹمنٹ اگر کچھ ہو رہا ہے تو ان کو ہم ضروری ہے کہ پروفائلیٹک ٹریٹمنٹ دیں, ان کو ضروری ہے لمبی ٹریٹمنٹ دیں. اس کو صرف اگر 1-2 اٹیک ہو رہے ہیں تو ہم کہیں گے جیسے ہی آپ کا سر درد شدید والا شروع, اور یہ مریض کو پتا ہوتا ہے کہ میرا سر درد اب شروع ہوا, تو وہ یہ دوا آپ لے لیں, یہ اپنے پاس رکھیں, اپنے والٹ میں رکھیں, اپنے پرس میں رکھیں. سر میں درد بہت زیادہ, تو کہاں پر آپ کو یہ بھی الارم ہونا چاہیے کہ آپ کو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بلڈ پریشر, دیکھیں یہ بھی ایک میتھ ہے کہ کئی لوگ اس کو کہتے ہیں سر درد میرے شدید ہو رہا ہے تو میرا بلڈ پریشر, اس کا کوئی آپس میں لنک نہیں ہے. بلڈ پریشر ایک الگ بیماری ہے, مائیگرین ایک الگ بیماری ہے, اور مائیگرین جو ہے چونکہ ہمارے کامنسٹ ہے. اور سر انشاءاللہ ہم دوبارہ اس پہ بات کریں, کیونکہ مائیگرین اور سر درد کی 3 ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ابھی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا اور میں ہوں آپ کے ساتھ حسب روایت حسب توفیق ہنستا مسکراتا آپ کا جانا پہچانا اشفاق اسحاق ستی, اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ زہرا نقوی صاحبہ. سیدہ مدیحہ زہرا, بہت شکریہ آپ نے کہ جو ایک نام رہ گیا تھا آپ نے وہ بھی کہہ دیا. میں تو ٹائم بچانے کے لیے میں نے مختصر نام لیا. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب. آج کا دن آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے, اور آج کا دن بڑا مزیدار بھی ہے, کیونکہ ہمارے پاس بھی آج بڑے مزے کی چیزیں اور خبریں اور پیکیجز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. اور ہماری کوشش پہ یہ ہوتی ہے کہ جو دن کا آغاز ہے نا وہ ذرا اچھے طریقے سے ہو جائے, کیونکہ دیکھیں نا صبح مسکرانا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب آپ کہیں گے یار مطلب اتنی ٹینشن انسان کو ہوتی ہے, کیسے مسکرا سکتے ہیں؟ دیکھیں مسکرانا کافی زیادہ امپورٹنٹ. آپ نے دیکھا نہیں, چین کی کمپنی نے تو لازم و ملزوم کر دیا ہے کہ بھائی جب انٹر ہونا ہے نا آفس کے اندر تو ہنستے مسکراتے ہوئے آپ نے آنا ہے, کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. میں اپنی سریلی آواز میں گنگنانا نہیں مسکرانا, ابھی دن کا آغاز ہوا. نہیں, آپ کو ٹف ٹائم جو ہے وہ دینا چاہیے نا, مطلب وہ گاتے رہو, گنگناتے رہو, زندگی کے دکھوں پر یا غموں پر مسکراتے رہو. آپ شعر کہا کریں, آپ کوشش کیا کریں, آپ شعر کہا کریں. جی مجھے پتا ہے آپ کس کی شاعری سے متاثر ہیں اور کس کے شعر سن کر آپ کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ آپ دوسروں نہیں, پھر تو میں آپ سے کہوں گی آپ بالکل بھی شعر نہ کہیے, کیونکہ وہ ایک لیول بن جاتا ہے نا. پوچھ کے تو بندہ کہہ سکتا ہے نا. ہاں پوچھ کے. ویسے چلیے سنا دے, شعر سنا دے. ویسے دن کے آغاز میں اچھا سا شعر سنا دے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. یہ عید کارڈ پہ شعر. ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, مدیحہ ہماری لاکھوں میں ایک. بہت شکریہ جی. ویسے بچپن یاد آ گیا, عید کارڈ آتے تھے, there was a time, لیکن اب لوگ بس موبائل پہ میسیجز بھیج کے, میری ٹیم پیچھے پاگل ہوگی ہنس کے, لوگ موبائل پہ میسیجز بھیجتے تھے. وہ بھی اچھا ہے, لیکن ہاتھ کے لکھے ہوئے نا لیٹرز کی یا کسی بھی بات بہت سی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. چلے ٹھیک ہے, ٹاپ سٹوریز.
अब कचरा दे और पैसे ले, कचरे के मसले की फिक्र करना छोड़ दे, सफाई की सफाई, रकम की रकम। नुमाइंदा घर आकर कचरे के वजन के बराबर पॉइंट्स भी देगा। पकड़ो बस्ता, आगे है स्कूल का रास्ता, इम्तिहान से बचना नामुमकिन। तलबा की जानिब से सोशल मीडिया पर मुहिम एक बार फिर इम्तिहान मनसूख करने का मुतालबा सामने आ गया। नादिया जमील के बुलंद हौसले ने मोजी मर्ज को शिकस्त डाली। कैंसर से सेहतियाबी पर मद्दाहों की दुआओं और नेक तमन्नाओं का शुक्रिया। नई जिंदगी में करियर के साथ फलाही कामों पर भी तवज्जो देने का ऐलान। और बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का अज़्म। मुल्तान में महकमे सेहत के सुपरवाइजर की फर्ज शनासी। 40 बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने के लिए बगैर कश्ती के ही दरिया भी उबूर कर लिया। और आपको बताया मदिया, कराची शहर का, पूरे पाकिस्तान के वैसे मसले मसाइल हैं, लेकिन हर जगह उनके हवाले से कोई सोल्यूशन मौजूद है किसी हद तक। पंजाब की बात करें, लाहौर की बात करें, जहाँ से आपका ताल्लुक है, और बेशक मसाइल हों, लेकिन एक मसला जो है वो हल कर लिया गया। लेकिन शहर क़ैद कराची का, जहाँ सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, मास्टर प्लान का मसला है, बिजली का मसला है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, वहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है वो है कि जब आप अपने घर से निकलते हैं, कुछ दूर चलते हैं या कुछ दूर नहीं भी चलते, तो घर के अतराफ ही आपको नजर आता है कचरा। बिल्कुल। और उस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए लैंडफिल साइट्स भी इतनी दूर दूर हैं कि जो कचरा निकाला भी जाता है वो इधर उधर ढेर कर दिया जाता है। और उससे आप तो एक तो आपकी जो है वो आसपास माहौल मुतासिर होता है, ताफुन फैलता है और बहुत से मसाइल, बीमारियां फैलती हैं उससे। और देखें ना, अगर हम कचरे की डिटेल पे चले जाए तो बड़ी सारी बातें होंगी, क्योंकि वहां पर होता है ना कि एक कचरे को ठिकाने लगाने के लिए जब दूसरी जगह लेके जाना होता है तो उसके लिए कुछ पेट्रोल की भी जरूरत होती है, कुछ वसाइल की भी जरूरत होती है। ये वसाइल भी नहीं है। खैर, लेकिन अभी हम आपको बता दें जनाब कि अगर आपके घर में कचरा है और आपको समझ में नहीं आ रहा किसको कहाँ ठिकाने लगाना है, हम आपको इसका सोल्यूशन बता रहे हैं जनाब। घर से आपका कचरा भी जाएगा और उस कचरे के एवज आपको पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि कराची में एक ऐसी हम बाहिम्मत लड़की, मैं इनको बाहिम्मत ही कहूंगी, बड़ी हिम्मत की बात है जनाब कि ऐसा कोई इनिशिएटिव लें। टीम है जनाब, हम देख रहे हैं हमारे साथ अफशीन सुहेल की। इन्होंने क्या किया है कि ये अपना नुमाइंदा भेजेंगे आपके घर, हफ्ते की बुनियाद पर ये आपके घर से कचरा उठाएंगी, भी कचरा उठाएंगे और उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और बाय द एंड ऑफ द वीक आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको कैश भी करवा सकते हैं और कचरा एक थैली में नहीं जाएगा, बल्कि बड़े पढ़े लिखे महज़ब तरीके से 4 डिफरेंट कलर की थैलियाँ हैं, जिसमें हरी है, जिसमें पीली है, जिसमें नीली है, जिसमें ब्राउन थैली है। तो अब ये थैलियाँ कैसे काम करेंगी और इसका इनको क्या फायदा हो रहा है और मुआशरे को तो ऑफ कोर्स फायदा होगा ही होगा। हम जान लेते हैं। सैयदा अफशीन हमारे साथ मौजूद हैं। कैश दी ट्रैश बेसिकली ये एक तंजीम है जिसकी ये फाउंडर है। बहुत शुक्रिया आपका अफशीन के आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि वैसे कैसे ख्याल आया, कैसे ये ख्याल कि भाई कचरे के साथ हमें ये करना है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये मेरा पीएचडी का रिसर्च प्रोजेक्ट है। शुरू तो मैंने वहाँ से किया था कि एक ऐसी रिसर्च ना करूँ जो अलमारी में बंद होकर रह जाए, बल्कि कुछ ऐसा हो जाए कि चाहे बहुत छोटा सा ही सही, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर हो, कहीं ना कहीं सोसाइटी का फ़ायदा ज़रूर हो। तो लेकिन अब जिस तरह से लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें, लोग साथ आ रहे हैं, तो अब ये मेरे लिए सिर्फ एक मेरा पीएचडी का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ऐसा हो गया है कि एक काफिला सा बनता जा रहा है और एक कॉज के लिए लोग साथ चल रहे हैं। अब ख्याल इसका किस तरह से आया कि हम एक शहरी की हैसियत से, जैसे आपने जिक्र किया, बहुत सारे मसाइल का सामना करते हैं और उनमें ये जो गार्बेज का प्रॉब्लम है, कचरे का मसला, ये बहुत बड़ा मसला है। जब अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल लोगों का अपना है। मतलब हम जिसकी शिकायत करते हैं कि कचरा यहाँ पड़ा है, यहाँ से स्मेल आ रही है, यहाँ पे गंदगी है, वो आया कहाँ से? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरे और आपके घर से ही आया है। तो बेसिकली जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी थीम ही ये है कि हम जब इसके सॉल्यूशन पे जाएं तो हम किसको फोकस करें? हम उनको फोकस करें जिनके घरों से ये कचरा निकल रहा है। हम उनको अवेयर करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और सबसे बड़ी बात, उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे कि उसके जरिए वो किस तरह से अपने घर से पाइल्स ऑफ गार्बेज निकालने की बजाय सॉर्टेड हुआ हुआ वेस्ट निकालें, जिसकी हमने एक डेस्टिनेशन सेट कर दी है, हमने उसकी एक सप्लाई चेन बना दी है ताकि वो कहीं भी पाइल अप ना हो। क्योंकि मेरे घर से अगर मैंने एक कचरे वाला लगाया हुआ है, उसको मैं दे देती हूँ, तो मैं मुतमईन हो जाती हूँ कि मेरा कचरा चला गया, मेरे मोहल्ले से भी चला गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं मौजूद है। मैं कंट्रीब्यूटर हूँ उस गार्बेज की। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, मेरी जिम्मेदारी वहीं पर है जब मेरे घर से वो गार्बेज निकल रहा है, मैं उसको जनरेट ही क्यों कर रही हूँ उतना ज़्यादा। तो अगर सॉर्टिंग का हम कल्चर लाने की कोशिश करें, पूरा मेरा प्रोजेक्ट बिहेवियरल चेंज पे है, क्योंकि बेसिकली मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ
اور میں ٹیچر بھی ہوں, تو جب ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ میڈیا میں وہ پاور ہے جو لوگوں کا ذہن بدل سکتی ہے, بالکل, تو کیوں نہ ہم اس پرٹیکولر کیس میں ہم میڈیا کو اس طریقے کے یوز کریں کہ ہم لوگوں کا ذہن بدلیں. بالکل اویئرنیس کی بات ہے, ہم ان کو لیکن اس طرف دوسری لے کے ساتھ آئیں. نفشین یہ بتائیے, ٹھیک ہے آپ نے لوگوں کے گھر سے کچرا تو اٹھا لیا اور لوگوں کو پوائنٹس بھی مل گئے, لوگ ہفتہ وار بنیادوں پہ اس کو کیش بھی کرا سکتے ہیں, یہ کچرا اب آپ کس طریقے سے استعمال کریں, کیونکہ دنیا بھر میں کچرے سے تو توانائی بھی بنائی جا رہی ہے. دیکھیں اس کے لیے پوری ایک سپلائی چین جو ہے میں نے مینیج کی. ابھی جو میں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے بہت چھوٹے پیمانے پہ کیا ہے, اور اس کے لیے سارے جتنے بھی میرے پاس ایکسپرٹس کی ضرورت ہے وہ آن بورڈ ہیں. سب سے پہلے میں اسٹارٹ کروں گی آرگینک ویسٹ. آرگینک ویسٹ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, جو کراچی یونیورسٹی کا انوائرمنٹل اسٹڈی سینٹر ہے ان سے ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے, اور وہ ان کو ہم جو لوگوں سے ابھی تک ہم نے آرگینک ویسٹ جمع کیا ہے یعنی کہ گرین بیگ, وہ ہم ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں ڈائریکٹ, اور وہ کمپوسٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. تو اچھا خاصا چنک ہے ویسٹ کا جو کہ آرگینک ویسٹ کا ہوتا ہے, پھل سبزی کی, وہ بہت بڑا اچھی کھاد تیار ہو وہ جاتی ہے, ہم نے وہاں سے اٹھا لیا. سمجھیں کہ اس کو ہم نے جانے سے ہم نا تھوڑا اس کو آسان الفاظ میں بات اس میں ذرا کرتے ہیں. آپ نے جو آرگینک ویسٹ کی بات کی, اس میں آ جاتی جناب ہمارے جو پھلوں کے چھلکے ہیں, جو ہماری سبزیوں کی جو آ جاتی ہیں, جیسے اگر انڈے بھی ابلے وہ بھی ہم سب کچھ سب چیزوں کو جو کھانا پینا ہمارا جو اس کی آ جاتا ہے ہمارا کچن ویسٹ بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ ہمارا آ گیا آرگینک ویسٹ میں, جس کی پھر اچھی کھاد بھی تیار کی جا سکتی ہے. نیکسٹ پہ جیسے لیکن جو گھر میں پلاسٹک وغیرہ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے, دیکھیں اس کے لیے ہم نے جو انوائرمنٹلسٹ ہیں اور ریسائکلرز ہیں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں, اور ان سے ہمارا کمٹمنٹ ہوا ہوا ہے کہ وہ اس کو جیسے پیپر ہے ہم الگ سیگریگیٹ کرا رہے ہیں جو پیپر کی ریسائکلنگ ہوتی ہے, اور اس کے جو ریسائکلرز ہیں جو لوگ اس کو لیتے ہیں ہم نے ان سے ایگریمنٹ کر لیا ہے, اور جتنا بھی ہم کلیکٹ کریں گے ڈائریکٹ وہ اس کو ہم وہاں پہ کریں گے. اسی طرح سے پلاسٹک, سب سے بڑا مسئلہ اس میں پلاسٹک کا ہے. پلاسٹک میں ویریشن بھی بہت ہوتی ہے جی, بہت ویریشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے سمپلی یہ نہیں سوچا کہ ہم بس بیچ دیں گے, ہم باقاعدہ جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ انوائرمنٹ پہ اس نقطۂ نظر سے کام کر رہے ہیں کہ وہ اس کو فردر سیگریگیٹ کریں گے, جو الگ الگ گریڈس کے پلاسٹک ہے اس کو اسی طریقے سے ریسائکل کیا جائے گا, اور ان دا اینڈ اگر کوئی ٹریش بچے گا بھی تو بھی وہ ہم کہیں پہ. ابھی تک آپ کے پاس کوئی اسٹوریج فیسلٹی ہے, کیونکہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ لے تو رہے ہیں لیکن ابھی آپ کے پاس اس کو ڈسپوز آف کرنے کی کوئی جگہ نہیں. ہم اس کو ڈسپوز کر بھی نہیں رہے, ابھی ہم اس کو اسٹور کر رہے ہیں. جی جیسے کہ گرین آرگینک ویسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ڈائریکٹ ڈیلیور کر رہے ہیں, وہ ہمارا بیچ لگ گیا ہے, پہلا بیچ ہمارا فرٹیلائزر کا ہو گیا ہے. سیکنڈ کے لیے فی الحال ہم نے ایک اسٹور ارینج کیا ہے چھوٹا, اور وہاں پہ ہم اس کو الگ الگ, وہاں ہم نے پورشنز بنائے ہوئے ہیں, پیپر اور یہ سب چیزیں ہماری الگ الگ اسٹور ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ. سوری ہفتے میں 2 دن جو ہے ہم ڈرائی ویسٹ جو لیتے ہیں وہ وہاں جا کے ہمارا الگ الگ ڈمپ ہو رہا ہے, اور جب وہ ایک سرٹن اماؤنٹ پہ آئے گا تو پھر ہم اس کو ٹرانسپورٹ کر کے جو ہم ہمارے ساتھ جو ریسائکلرز ہیں ان ایگریمنٹ, وہ پھر اس کو وہاں سے وہ کریں گے. ان کے ساتھ کوئی کوانٹٹی کی بات ہے ہوئی ہے, کتنی کوانٹٹی ہوگی پھر آپ لے سکیں گے؟ جی وہ اصل میں ریسائکلر تو بہت بڑی بڑی کوانٹیٹیز میں ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ یہ میرا پروجیکٹ ہے اور اس کو کافی لیول پہ اپریشیٹ کیا گیا تو وہ اتنی بڑی تو نہیں, لیکن پھر بھی ایک. اچھا یہ پوائنٹس کے حوالے سے بتائے گا, پوائنٹس کتنے ملیں گے, کیسے ملیں گے, اور یہ کیش کیسے ہوں گے, کتنا کیش ملے گا لوگوں کو ابھی یہ جاننے میں, کیونکہ لوگوں کا کچرا بتھیرا ہے. دیکھیں کتنا تو میں ایگزیکٹلی نہیں دوں گی, لیکن اس کے لیے ابھی ہم نے جو میں نے بات کی نا کہ جو ریسائکلرز ہیں جو یہ سارے لوگ ہم نے مل کے اس پہ بات کی کہ کیا اس کی ریسیل ویلیو ہوتی ہے, پلاسٹک کی ریسیل ویلیو کیا ہوتی ہے, پیپر کی ریسیل ویلیو ہوتی ہے. اب پلاسٹک میں بہت ویریشن ہے تو اس کی ریسیل ویلیو بھی اسی طرح سے. تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کر کے ہم نے ایک ان بٹوین ایک وہ کی ہے, پرائز ڈیسائیڈ کی ہے کہ بھائی یہ مناسب ہے, اگر ہمیں تھوڑا لو گریڈ وہ بھی ملے تو بھی نقصان نہیں ہوگا, ہائی گریڈ ملے گا تو بھی نقصان نہیں ہوگا. ہم بیسیکلی ایک اپلیکیشن پہ جا رہے ہیں, اس کو ہمارا اپلیکیشن لانچ کرنے کا ارادہ ہے, تو اس میں ہم ہر طرح کے مٹیریل کے اگینسٹ. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس کام کو شروع کیے ہوئے؟ دیکھیں پلاننگ فیز تو آپ سمجھیں کہ یہ 2020 سے چل رہا ہے, جنوری سے چل رہا ہے, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی کس فیز میں ہیں؟ اور ابھی جو ہے لانچ کا فیز ہے, جو کہ میرا جو فرسٹ میں نے علاقے سے شروع کیا ہے اس کا فرسٹ منتھ میرا آلموسٹ ہونے والا ہے, اور 2 کمیونٹیز ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. اس محلے میں, جس محلے میں آپ نے یہ کام شروع کیا ہے, تو آبویسلی صفائی ستھرائی ویسے تو لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ لالچ پیسوں کا ان کو بہت ہوتا ہے کہ ہاں جی چلو کچھ آ ہی رہا ہے, ورنہ کچرا گھر سے نکالنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں, ورنہ وہ ویسے بغیر پیسوں کے قدم وہ آرام سے کھڑکی کھولتے ہیں اور جی کچرا نیچے پھینک دیتے بھی نہیں ہیں, وہ جیسے پارٹنر میں پھینک دیتے ہیں. اب تک آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا لوگوں کو پے کرنے کے حوالے سے؟ ایکسپیرینس دیکھیں, جو ایکسپیکٹیشنس تھی نا, میں بہت ہی ریئلسٹک اپروچ لے کے چلی تھی کہ میرا یہ تھا کہ اگر میرے ساتھ 2 گھر بھی چلتے ہیں نا تو وہ میرے ارلی موورز ہوں گے, اس کے بعد آئیں گے فالوورز. لیکن اور ارلی موورز بہت کم تھے, 5 یا 6 گھر تھے, لیکن جب وہ ایک فلو میں آیا تو پھر ہوا کہ ان کے محلے نے ان کے برابر والے میں ہوتے 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 اسپریڈ ہو کے اب میرے ساتھ اچھے خاصے لوگ ہیں. لیکن اب میں نے خود اس کو اس لیے کم کیا ہوا ہے کیونکہ یہ پورا پروجیکٹ میں اپنے طور پہ خود کر رہی ہوں اور میرے پاس لمیٹڈ. اچھا ایک وجہ سے آپ کے 4 قسم کے ڈفرینٹ تھیلے ہیں, جس میں اگر آپ نے جیسے آپ نے بولا کہ جی جو گرین ویسٹ ہے وہ گرین پہ تھیلے میں جائے گا, بلو تھیلے میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پلاسٹک کی چیزیں, میٹل کی چیزیں جائیں گی. دین ہمارے پاس پیلا
नीला थैला भी है प्लास्टिक के ठीक है, जिस प्लास्टिक के लिए है, और उसके बाद फिर ब्राउन थैला भी है, जो दूसरी बाकी चीजें, गत्ते फिर वगैरह। ये आप थैले ऑलरेडी उनको दे देते हैं या फिर ये खुद जो है वो चीजें उठा के चुन चुन के लहदा से डालते हैं? नहीं, हमने उनको जैसे जब Already हमारे दे पास दिए हुए हैं। यूज़र रजिस्टर हुआ है तो पहली दफ़ा हमने अपने राइडर को भेजा, उनको ये बैग्स दिए, बल्कि मैंने अभी क्योंकि छोटे पैमाने पे मैंने खुद जाके जो वर्कशॉप्स की थी तो मैंने उसी के साथ उनको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करा के और सब बैग्स उनको कितने पैसे वैसे लोग अभी तक कमा चुके हैं अपने इस कचरे से, ये बताइए? देखिए, अगर आप इंडिविजुअल देखें, हम 2 मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। एक हमारे पास हाउसिंग कम्युनिटी है जो कि इकट्ठे पे काम कर रही है, वो कह रही है कि हमारे घरों से इकट्ठा लें, तो उनके पास एक अच्छा रीजनेबल अमाउंट आया है। और वो क्या अमाउंट है? वो अमाउंट मैं अभी पहल नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि अभी हमारा पूरा फुल मंथ का वो साइकिल शुरू नहीं हुआ। हम इसको जब वो क्लियर करेंगे तो पूरा महीना हमारा हो जाएगा। सोसाइटी से आपकी एक मुआहदा हुआ है तो उसके अंदर जाहिर है कि जब तक वो रिसाइकलर्स आपको पे नहीं करते तब तक आगे वो जी, मैं इसीलिए एग्जैक्टली आपको बिल्कुल कोट मैं इसी वजह से नहीं कर रही क्योंकि हमें एक सर्टेन अमाउंट भी रीच करना है। हमारा लमसम तो बात हुई हुई है, लेकिन मैं अगर एग्जैक्टली कोट करूँ तो हो सकता है कि वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। सैयदा अफशीन सुहेल हमारे साथ मौजूद थी, बड़ा ज़बरदस्त ये काम करी जनाब, लोगों में अवेयरनेस भी फैला रही है, फिर कोशिश करिए कि जो कचरा हमारे घरों से निकलता है उनको किसी अच्छे तरीके से ठिकाने लगाया जा सके और समहाउ लोग उससे कहीं ना कहीं पैसे भी बना सकें। सो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा बच्चों की तालीम के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अशफाक हमने पिछले साल देखा कि कोविड की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं हो सके थे। फिर उसमें हुआ ये कि बच्चों को उनके पिछले साल की परफॉर्मेंस देखते हुए बच्चों को आगे पास कर दिया गया बगैर एग्जामिनेशन के। अब पिछले साल एग्जाम्स नहीं हुए तो अब इस साल तो एग्जाम्स इसलिए भी होना ज़रूरी है क्योंकि अब स्कूल्स के पास पिछले साल की कोई कारकर्दगी मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि जनाब बच्चों को पड़ गई आदत, बिल्कुल, और बच्चों ने अब ज्यादातर क्या हुआ है, ज्यादातर हुआ ये है कि कराची की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जनाब हुआ ये है कि ऑनलाइन एग्जाम्स हुए। अब जाहिर है कि ऑनलाइन एग्जाम्स कितने शफाफ और साफ हो सकते हैं तो वो आप इमेजिन कर सकते हैं। कितने केस इसमें इस वाले से सुने, और अब देखें ना, हमने स्पेशली अब देखा है कि आजकल सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स जो टाइम देखिए अपनी किताबों में अपने पढ़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं वो टाइम उन्होंने लगा दिया अब सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड है, जो हैशटैग है जो आजकल ट्रेंड कर रहा है वो ये जनाब कि कैंसिल ऑल द एग्जाम्स। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब तो कोरोना के केसेस भी कम हो गए हैं। आप हमें देख लें, हम भी रोज अपने दफ्तर आते हैं, और वजूहात देखें ना कौन कौन सी हैं। गर्मी हर साल होती है, मॉनसून अभी ऐसा शुरू नहीं हुआ, लाइक प्री मॉनसून का सीजन चल रहा है, और उसके अलावा जनाब कोरोना की वबा की बुनियाद पर तो वैक्सीनेशन भी चल रही है उसके लिए, तो बड़ी जनाब वैक्सीन भी हुई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा शफाक कि ऐसा क्या करें जो बच्चे एग्जाम से, क्योंकि देखें अब आपके मजीद आपके साल जो हैं वो ज़ाया नहीं किए जा सकते। ये आपने बिल्कुल सही बात की कि ये आदत बन गई है घर बैठने की। तो हम अगर देखें तमाम तर तफरीही मकामात पे, पार्क्स में, शॉपिंग मॉल्स में, क्या ये बच्चे क्या ये बाहर नहीं निकले हुए, वेकेशंस पे क्या ये बच्चे बाहर नहीं निकले हुए, बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एग्जैक्टली ग्रोसरीज के लिए नहीं जा रहे, रेस्टोरेंट्स खुल गए, दोस्तों से नहीं मिल रहे, बाहर गली मोहल्लों में नहीं मिलते, टिकटॉक नहीं बना रहे, मतलब टिकटॉक बना रहे, एक जैसे कपड़े पहन के टिकटॉक बना रहे, एक जैसे हेयर स्टाइल, मतलब ट्विन्स भी इतने मतलब उनकी शक्लें नहीं मिलती जितने इन टिकटॉकर्स के मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं, पता है कि मैं बैकलैश भी बड़े स्टूडेंट्स का आएगा, लेकिन देखिए आपके अपने ही करियर की लिए और आपके अपने ही फ्यूचर के लिए अच्छा है, और इसी वाले से बात करेंगे। चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। शाह साहब सबसे पहले तो बताएं, जो स्टूडेंट्स ने फिर मसला डाला हुआ है वो कह रहे जी मानसून की बारिश आ रही है, गर्मी बड़ी है, एग्जैक्टली मैंने जरा उसको मुहज़्ज़िब अल्फाज में डालने की कोशिश की। सबसे पहले बताएं आप इसको कैसे डील करेंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे? ऑफ कोर्स आप लोग की टीचर्स भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, माँ बाप ऑनलाइन क्लासेस के भी पैसे दे रहे हैं, ट्यूशंस के भी पैसे दे रहे हैं, ये कहाँ जाके मामला रुकेगा? देखिए, एक तो बात ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि ये जिसे कहते हैं ना, कभी किसी ने प्रोडिक्ट नहीं किया था। ये सर्कमस्टेंसेस वो हैं, ये वही सिचुएशन है जो एक जंग में होती है। आपको एक हर दिन एक नया डिसीजन लेना है। देखिए, बच्चों के लिए इतना ईज दिया गया कि इलेक्टिव पेपर दिए जाएंगे, ठीक है, वो उस इलेक्टिव पेपर्स में से भी 70% सिलेबस इंक्लूडेड है, कंडेंस कर दिया गया है। तो अब इन सब सिनेरियोज के अंदर, और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का कर दिया गया है, और पेपर्स में 50% MCQs कर दिए गए हैं, 30% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड 20% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो ये तो ऐसा पेपर हो गया जो कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं। मैं तो जेलस हो रही हूं भाई कि हमारे टाइम में ऐसा क्यों ऐसा हुआ नहीं। तो अब जब ये इतनी ईज दे दिए गए, वो इसलिए दिए गए ना कि बच्चे प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाए, सर्कमस्टेंसेस अच्छे थे नहीं, और आगे जाके मॉनसून भी है, लेकिन मॉनसून मिड ऑफ जुलाई जो अभी नई प्रोडिक्शन आई है, तो पेपर्स तो उस वक्त तक हो चुके होंगे, लेकिन हाँ इंटर के पेपर्स उसमें इफेक्ट करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई मॉनसून होती है, बारिश होती है, तो पेपर आगे पढ़ाए जाएंगे। एक और चीज़ है कि जो हम मुहिम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और जो कैंसिल ऑल एग्जाम्स और जो भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ये जो वालिदैन पैसे दे रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए, सारी चीज़ों के लिए, ज़ाहिर है उनकी भी ख्वाहिश है ना कि उनके बच्चे अगली क्लासेस में जाएं, और चूंकि पढ़ाते रहें। बिल्कुल, अगर सिर्फ प्रमोट ही करना होता तो पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी, वो तो वैसे ही हो जाता।
تو یہ بچے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنے والدین کو کیسے کنونس کر پا رہے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر تو ظاہر نہیں ہو سکتا یا ان کو ان کے علم میں لائے بغیر, تو یہ کیسے ہو رہا ہے اور والدین کا کیا موقع؟ دیکھیں انفارچونیٹلی اب ایسا سینیریو ہے کہ ماں باپ صرف اس کیس میں نہیں اور کیسز کے اندر بھی اپنے بچوں کے ہاتھ بلیک میل ہوتے ہیں. اب بچہ اگر روئے گا گھر میں, بچہ کھانا نہیں کھائے گا, تو ماں باپ اوبیسلی پھر یہ کرتے ہیں کہ بھائی کیسے پڑھے گا, یہ کرے گا. اس کے اندر میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک ضرور یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ سوشل ایکٹیوسٹ کو پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. اس میں اگر سوشل ایکٹیوسٹ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ پھر اپنی جنریشن کو کہاں لے کر جائیں گے. بالکل ایگزیکٹلی, ایک اور سال ضائع ہو جائے گا اور ان کے پاس تو پچھلے سال کے ایگزامس بھی نہیں جس کی بنیاد پہ ان کو آگے کر سکیں. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, چلیں ٹھیک ہے یہ تو ہم نے ان کے والے سے بات کر لی, آپ لوگوں کے اینڈ پہ کیا تیاریاں کی گئی ہیں تاکہ بہت سارے پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں کنسرن ہے کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, سوشل ڈسٹینس فزیکل ڈسٹینس بچے مینٹین کریں گے یا نہیں کریں گے, چاہے یہ بچے باہر گلی میں روز کھیل رہے ہوں وہ تب مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں کے اینڈ سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ دیکھیں اس میں تیاریاں تو دیکھیں یہی ہیں کہ ہمیشہ جب ایگزامز ہوتے تھے تو بچے ویسے ہی دور بیٹھتے تھے, قریب تو ویسے بھی نہیں بیٹھتے تھے. بات بالکل صحیح ہے. تو ہمیشہ سے ایس او پیز کو فالو کیا گیا ہے. تو ابھی بھی وہی ہوگا کہ ڈسٹینسنگ کے ساتھ بچوں کو بٹھایا جائے گا, ٹیمپریچر سینسرز وہاں موجود ہوں گے, جب بچوں کو ٹیمپریچر کے ساتھ اندر لایا جائے گا وہاں پر بچوں کو سینیٹائز کیا جائے گا, ماسک کمپلسری ہوگا اور فینس اور زیادہ لگائے جائیں گے تاکہ بچوں کو سفوکیشن نہ ہو ماسک پہننے. یہ جو چل رہا ہے سلسلہ اس کے اندر obviously آپ کی پیرنٹس سے بھی میٹنگ ہوتی ہوگی, بچے بھی اپنے مطالبات رکھتے ہیں. سب سے جو بزار قسم کا مطالبہ ان کی جانب سے کیا آپ کے سامنے آیا بچوں کی جانب سے اگر کہا جائے؟ دیکھیں بچوں کا تو سب سے زیادہ یہی آ رہا ہے کہ ایگزامز نہ لیے جائیں, پروموٹ کر دیا جائے. ابھی تک سینیریو یہی چل رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ نے اتنا ایز دے دیا ہے, ابھی مجھے یاد آیا کہ 5% گریس مارکس دیے جائیں گے جو بھی ایگزام دیتے ہیں, کسی کو فیل بھی نہیں کیا جائے گا, 33 مارکس مل جائیں گے. اور لاسٹ ایئر جو 9th میں پیپر نہیں لیے گئے تھے اس کے 3% ایڈیشنل دیے جائیں گے. تو اور پھر بھی اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے کے پاس. میرے خیال میں مدیہ ہم لوگوں کو امپروومنٹ کے لیے اپلائی کر دینا چاہیے. بچوں کو نہیں دیا سکتا. اب جو بھی بچے اگر کوئی بھی پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں نا تو یہ بالکل لیم ایکسکیوزز. شاہ صاحب آپ نے بالکل بات صحیح کی, واقعی مطلب ہم نے سعید غنی صاحب کو بھی سنا نہیں کہ ہم کسی کو فیل نہیں کرے, کسی کے اگر 33 سے مارکس کم ہوں گے ہم اس کو 33 مارکس دے دیں گے تاکہ پاس ہو جائے. پچھلے سال کے آپ نے 3 مارکس ایڈ کر دی. بالکل. پھر کیا مسئلہ ہے, کیا ان کو کیا نفسیاتی مسئلہ سمجھ پا رہے ہیں آپ ان کا؟ آرام کی عادت پڑ گئی ہے. تعلیم سے جو ہے وہ سب دور ہو چکے ہیں. ایک روزانہ جو ہے نا وہ دیر سے اٹھنے کا, نہ پڑھنے کا, گلیوں میں گھومنے کا, تفریح کرنے کا ایک نانی کے گھر جانے کا ہو گیا اور پڑھائی سے بچے دور ہو گئے. اب بچوں کو جب پڑھائی کی طرف لایا جا رہا ہے نا تو یہ پورا ریٹیلیشن جو سامنے آ رہا ہے, وجہ یہ ہے کہ گول ان کا اچیو ہو رہا ہے, پروموشن ان دی نیکسٹ کلاسز, ایجوکیشن پہ فوکس نہیں. ایک دفعہ بینچ مارک بنا دیا گیا جو کہ پہلے بھی ہم نے پروٹیسٹ اس پہ کیا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کہ بچوں کو ایک وے آؤٹ کا راستہ دکھا دیا گیا کہ ہم آپ کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں وداؤٹ ایگزام. تو اب وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم پروٹیسٹ کریں گے تو پھر ہمیں دوبارہ پروموٹ کر دیا جائے گا. اچھا دوسری چیز یہ کہ اسکولز وغیرہ میں آپ کیا رویہ دیکھ رہے ہیں بچوں کا؟ ظاہر ہے اس ساری صورتحال کے پیش نظر بچے جو ہے وہ ایگریسو ہیں یا بچے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا نارمل ہے ابھی سب کچھ؟ نارمل تو نہیں ہے. دیکھیں ایک تو سب سے پہلے بچے لیزی ہو گئے ہیں, صبح میں اٹھ کے آنا اور پھر کلاس میں ایکٹیو رہنا, یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے جو ٹیچرز کو فیس کرنا پڑا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو تھوڑے بڑے بچے ہیں وہ تھوڑا نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی طرف چلے گئے ہیں, پڑھائی کی طرف سیریسنس نہیں ہے. کلاس میں بیٹھیں گے تو تھوڑا سا جو ہے نا ایک دوسرے کو چھیڑیں گے, ڈسٹربنگ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ پورا کریٹ کریں گے. آن لائن کلاس میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے کیمراز بھی آف کر دیتے ہیں, پھر اگر ان کو اسپیسیفکلی بولا جی کیمرا آن کریں تو ہم نے سنا ہے کہ لوگ یہ بھی شکایت کرتے جی ہم ہراس فیل ہوئے ہیں اس سے. مطلب مختلف قسم کے یہاں پہ ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھی ہیں, بٹ آن لائن کلاس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ بہت سارے بچے ہم نے بھی دیکھے خود منہ سے بتاتے ہیں کہ ہم تو سو گئے تھے کہ ہمارا ٹیسٹ تھا, ہمارا پیپر تھا, تو ہمارے ایک اور دوست بہت اچھا سے فزکس میں ہم نے اس کو بلایا. اصل میں جو اپارچونیٹیز تھیں اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا گیا کچھ جگہوں پر, جو کہ دیکھیں ایک آلٹرنیٹ دیا گیا تھا کہ ایک سبسٹیٹیوٹ تھا کہ بھئی آپ ابھی فزیکل نہیں کر سکتے تو آن لائن کر لیں, تو اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جاتا. اسکول میں ابھی ہوا ہے آن لائن جی ایگزامز جو ہیں وہ ہوئے ہیں, آن لائن ایگزامز بھی ہوئے ہیں, بالکل ہوئے ہیں, لیکن اس میں بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اسپیشلی پیرنٹس کو, کہ اپنے بچوں کو گائیڈنس دیں کہ بھئی اب آپ کو پڑھنا ہے, ایگزامز دینے, اور ایگزام دیے بغیر اگر کوئی پروموٹ ہوتا ہے تو یہ بھی غلط بات ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. دیکھیے یہ جو بات ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ شاہ صاحب کے لیے, میرے لیے یا اشفاق کے لیے, مطلب ہم نے تو جو پڑھنا تھا ہم نے وہ پڑھ لیا اور آگے ہم نے جہاں جہاں پہنچنا تھا وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. یہ آپ کے فیوچر کی بات ہے. اگر آپ بغیر پڑھے, بغیر آپ یہاں پہ پیپرز دیے, اگر آپ آگے کسی کلاس میں پروموٹ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ جس معاشرے میں جا کے بھی سرو کریں گے آپ ان کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. طارق شاہ صاحب جی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہے بجٹ.
जो आजकल एक बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, तो उसके अंदर देखिए एजुकेशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा गया। इसके अंदर देखिए अभी भी जो अगला सेशन जो है इसके अंदर ब्लेंडेड लर्निंग चलेगी, ऑनलाइन एजुकेशन चलेगी, तो इसके अंदर स्टूडेंट पैकेजेस इंटरनेट पे लाने जरूरी है ताकि पेरेंट्स का बर्डन कम हो। गैजेट्स के प्राइसेस जो पहले 10,000 का मिलता था आज 25,000 रुपए का, 20,000 रुपए का मिलता है। इस पे सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। इवन स्कूल्स को कोई ना कोई रिलैक्सेशन टैक्सेस में देने चाहिए ताकि वो शिफ्ट हो पेरेंट्स की तरफ। शाह साहब, वैसे आपने इतनी अच्छी बात की, ये मुझे बताएं कि यहाँ से बजट में तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए। आप लोगों ने भी कुछ सोचा है कि पेरेंट्स को कुछ रिलीफ देना है, क्योंकि बड़ा टफ टाइम पेरेंट्स से भी देखा हुआ है, कोई 10% या 15% मतलब फॉर दिस ईयर 30% से शुरू करते हैं, 20 पे खुद ही आ जाएंगे। बार्गेनिंग ऐसे होती है। 10-15 मतलब फिर इनकार वाली बात है। 30 कहूंगा तो 20 पे आएंगे ना। 6 मंथ्स तक हम 20% दे चुके हैं, लेकिन हमने उस सिनेरियो में दिया कि गवर्नमेंट हमें रिलैक्सेशन दे देगी। इवन अपने चले कुछ दे ना तो कम से कम लेना, मतलब टैक्सेस ना ले हमसे, कोई इजाफी चार्जेस ना ले। आप भी तो फीस पूरी ले रहे हैं ना। तो जब हमसे ये सब चीजें एग्जाम कर दी जाएंगी तो उसका जो एडवांटेज है पेरेंट की तरफ जाएगा, हम वो पेरेंट पे ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट कोई स्टेप अप तो करे ना। देखें हम ये समझते हैं कि पेरेंट फीस देने में मुश्किल हो रही है पेरेंट्स को, तो गवर्नमेंट को जो गैप क्रिएट हो रहा है और बगैर फीस के स्कूल चल नहीं सकता, तो जो गैप क्रिएट हो रहा है तो उसमें पेरेंट को सब्सिडी दी जाए, स्कूल को कोई ग्रांट दी जाए ताकि वो जो गैप है वो दरमियानी रास्ता निकले ना, क्योंकि वालिदैन लेकिन जिन स्कूलों की ऑलरेडी फीस इतनी महंगी है, अगर वहाँ पे ठीक है जिनकी फीसें कम है वहाँ पे तो ग्रांट समय में भी आती है, लेकिन जिन स्कूलों की फीसें इतनी ज्यादा, मतलब 30,000 फीसें, तो वहाँ पे सब गवर्नमेंट भी कहेगी कि इनको क्या ग्रांट दी जाए, इनको तो हमें ग्रांट देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, तारिक शाह हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन बात सही है, देखिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी करना चाहिए, ऑफ कोर्स कहीं कहीं स्कूलों को भी फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मामला है बच्चों की पढ़ाई का। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी पिछली हुकूमत ये कर गई, पिछली हुकूमत तो हंसता बसता पाकिस्तान इनके हवाले करके गई थी, आज उस पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है और अब इन्हें शिकस्त नज़र आ रही है। पिछले 10 ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त हुई है और अगले इलेक्शन में शिकस्त से बचने के लिए ये इलेक्शन कमीशन को नाकारा करना चाहते हैं। ये इंतखाबी कवानीन में अपनी मनपसंद तरामीम करना चाहते हैं, ये वोटर्स लिस्टों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में चिप लगाकर उनसे आरटीएस वाले नतीजे हासिल करना चाहते हैं। और जब ऑपोजिशन इनसे सवाल पूछती है तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन इनको आइन की शिकों का हवाला देकर ये बताता है कि आप आइन में सादा अक्सरियत से तब्दीली नहीं कर सकते, तो ये इलेक्शन कमीशन को धमकाते हैं, डराते हैं। मैं वफाकी वज़ीर इत्तलात के उन बयानात की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ जिससे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धौंस देने की कोशिश की है, इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश की है, इलेक्शन कमीशन को ललकारा है, इलेक्शन कमीशन को अपने सियासत का निशाना बनाने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी कौमी इदारा है। हम हमेशा से इस मौक़िफ़ पे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद खुद मुख्तार इदारे की हैसियत में मजबूत होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन को नैब बनाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के हर कौमी इदारे को नैब की तरह ताबेदार करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि FIA भी नैब वाला काम करे, एंटी करप्शन वाले भी नैब की तरह इनकी उंगलियों पे नाचें और इलेक्शन कमीशन भी नैब की तरह इनकी उंगलियों पे नाचे तो वो ठीक है। अगर इनकी गलतियों की निशानदही करे तो इलेक्शन कमीशन जो है वो गलत है। मैं समझता हूँ कि ये रवैया कि जिससे आप कौमी इदारों को बुली करें, आप कौमी इदारों को धमकाएं, ये पाकिस्तान में
इंतज़ामी इनारकी पैदा करने वाला रवैया है। इन्होंने एक एक करके तमाम कौमी इदारों को तबाह कर दिया है। पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुकी है। एहतसाब के इदारे को इन्होंने घर की लौंडी बना दिया है। अदलिया पर ये हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर इदारे को इन्होंने अपनी जागीर बना रखा है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जी जनाब, तो बात कर रहे थे एहसन इकबाल साहब, और उनकी जानिब से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया, और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि पॉलिटिक्स में बयानबाजी चलती है और उसका एक बड़ा अहम लेवल होता है कि हुकूमत की जानिब से बयान दिए गए, फिर अपोजिशन की जानिब से आके उसको रिटेलिएट किया जाता है। तो मदिया, अब हम किस अहम मामले पर बात करने जा रहे हैं? जनाब, हम एक पंजाब हुकूमत के एक अच्छे इकदाम के हवाले से बात करने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने बरवक्त इकदाम करते हुए लाहौर में जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह होती है और उसमें जैसे हम देख रहे थे कि कमी आ रही थी, उस कमी को रोक लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने इसके लिए पानी के दोबारा इस्तेमाल की पॉलिसी जो है, नए एक्यूफो चार्जेस जो हैं और बारिश के पानी के ज़खायर की तामीर की है। ये बड़ी अच्छी बात है, और इसकी वजह ये है कि पानी जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। और जाहिर है कि पानी के हुसूल के कई तरीके, दरिया का पानी भी होता है, उसके अलावा नहरी पानी होता है, और सबसे बढ़ के बरसात का पानी। लेकिन बरसात का पानी उस सूरत में काबिल इस्तेमाल होता है जब आपके पास स्टोरेज कैपेसिटीज हों, नए ज़खायर बनाए जाएं जिनके अंदर पानी की स्टोरेज हो सके, साथ ही साथ फिल्टर्स भी हों। एग्जैक्टली। और ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरियात पूरी करता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पंजाब में बोरिंग का सेटअप भी है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, लोगों ने अपने घर के अंदर भी इस तरह के अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, वाटर पंप्स लगाए हुए हैं। तो जनाब, वो एक अब आहिस्ता आहिस्ता हो क्या रहा था पिछले कुछ सालों में कि अगर फ़र्ज़ करें कि पहले पानी 60 फीट पे, 70 फीट पे या 100 फीट पे दस्तयाब था, तो वो बढ़ते बढ़ते 160, 170, 200 फीट, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो मकदार है वो कम होती जा रही थी, लेवल नीचे जाता जा रहा था। तो ये बड़ा कंसर्निंग था। बिल्कुल जी, और स्पेसिफिकली वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में कहा कि 40 बरस में पहली बार लाहौर शहर के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को गिरने से मज़ीद रोक लिया गया है। साथ में इनका मज़ीद कहना था कि पानी को महफूज बनाने की पॉलिसी के नताइज भी अब आना शुरू हो गए हैं, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि काफ़ी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, MD वाह साहब, सैयद जाहिद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। एक बड़ी अच्छी खबर है लाहौर में कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मज़ीद अब नहीं गिर रही, तो ये बताएगा कि कितनी तसल्ली बख्श, कितनी हौसला बख्श बात है ये। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा इवेंट हुआ है, ये ऐसी कामयाबी हुई है जिसकी शायद ही दुनिया के किसी शहर में मिसाल हो कि पानी की गिरावट जो नीचे जा रहा हो और इतने 1 करोड़ आबादी उससे मुस्तफीद हो रही हो उसी आबी ज़ख़ीरे से, और वो पानी रुक जाए नीचे जाने से। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी लैंडमार्क अचीवमेंट है। जाहिद साहब, पहले एक चीज़ ये ज़रा समझाइएगा हमें, हमारे नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में, कि पहले इस वक्त क्या वाटर लेवल था, ज़ाहिर है, और इसको मापने का पैमाना क्या है कि बोरिंग की जाती है तो जितने फ़र्ज़ कर रहे हैं 400 फीट पे हो रही थी तो अब 500 पे हो रही है या अब कम हो गई है, तरीक़ेकार क्या है? ये दरअसल ऐसे है कि पानी का लेवल ट्यूबवेल लाहौर में नसब है 596 ट्यूबवेल लोगों को पानी फराहम करने के लिए, ठीक है, और ये अच्छा खासा ये नंबर है। और ये ट्यूबवेल के ऊपर एक वाटर मेजरिंग डिवाइस लगा होता है कि उसमें आप डिप करते हैं पानी में एक लॉन्ग केबल, जी, और जब वो पानी से टच करती है तो अलार्म बजता है। ओके। उसमें हमें बरसात वो डिजिटल और या मैनुअली आप देख लेते हैं कि कितनी गहराई पे पानी आ गया। और उसमें जो लाहौर में चूंकि लेवल एक जैसा नहीं है हर इलाके में, रावी के करीब कम गहराई का पानी है, दूर जाएं गुलबर्ग में सबसे ज्यादा गहराई है, ठीक है। तो रावी के पास जो 2018 तक 23 मीटर पानी था गहरा, और गुलबर्ग में 50 मीटर था। अच्छा, तो उसके बाद ये जो स्टेप लिए जो आपने किसी का जिक्र भी किया कि लेजिस्लेटिव मेजर्स थे कि एक हमने प्राइवेट ट्यूबवेल पे चार्ज कर दिया कि कोई भी लगाएगा तो लाइसेंस हासिल करके लगाएगा, चाहे वो 5 स्टार होटल है, चाहे वो क्लब है, चाहे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, तो एक तो उन पे चार्ज लगा दिया और वो माइंडफुल हो गया कि हमने देगा। और ये कब स्टार्ट किया था आपने ये इक़दाम, क्योंकि ऑब्वियसली फौरन तो असरात नहीं आते चीज़ों के? जी बिल्कुल, ये 2018 में शुरू में हमने कर लिया, 18-19 में ये काम शुरू कर दिया, और साथ हमने ये किया कि नए ट्यूबवेल को लगाने के लिए सिर्फ नीड बेस कर दिया। पहले हर साल 25 से 30 ट्यूबवेल नए नस्ब हो जाते थे लाहौर में, फिर हमने कहा कि अब ट्यूबवेल को भी गैर सियासी बनाया जाए और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ ना लगाया जाए।
तो ये दूसरा स्टेप था। तीसरा ये है कि ऑपरेटिंग आवर्स जो अननेसेसरी थे, लोगों के घरों में स्टोरेज नहीं थे और वो रात के 1 बजे भी पानी टैप चल रही होती थी, तो उसको हमने थोड़ा सा रैशनलाइज किया कि जब तक हम मीटर नहीं लगाते उस तक थोड़ा सा रात के टाइम या ऐसे औकात जब कम जरूरत होती है तो वो लोग स्टोरेज को यूज करें, तो उनको थोड़ा से औकात कार को ठीक किया गया। फिर बारिश के पानी का जखीरा किया गया एक जगह पे और दीगर 2 वो कितनी जगह पे किया गया बारिश के पानी का जखीरा? एक पॉइंट पे तो ऑलरेडी कंप्लीट है, वो आप देखें कि उसके ऊपर हमने टेनिस कोर्ट्स बना दिए हैं और वो जखीरा नजर नहीं आता। जब बारिश होती है तो रोड से पानी गायब होकर टेनिस कोर्ट के नीचे चला जाता है। 14 लाख गैलन का जखीरा है। सही 15-15 लाख के 2 दफाए जेर तमीर है। कल हमरा मार रोड पे है कश्मीर रोड के साथ, और वो जेर तमीर है। 15 लाख गैलन, एक 13 वाला गेट से 15 लाख। अच्छा, तो जाहिर साहब ये बताइएगा कि क्या ये सब कुछ इकदाम लाहौर में किए गए हैं या बाकी शहरों में भी आप लोग प्लान कर रहे हैं? बाकी शहरों में इनको रेप्लिकेट करने के लिए पॉलिसी डिसीजन है। जो फेडरल फ्लड कमीशन इस्लामाबाद है, उन्होंने लाहौर के इक़दाम को देखा और उन्होंने फिर एक कराची में भी एक सेमिनार हुआ पिछले साल जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने किया, फ्लड कमीशन भी उसमें शामिल था, कि कराची में और पंजाब के भी दीगर शहरों में या जहाँ भी रेन वाटर एक्यूमुलेशन होती है उसको आप स्टोरेज में कन्वर्ट करें। और ज़ेर ज़मीन पानी को बचाने के लिए अगले स्टेप जो लाहौर में है, वाटर मीटरिंग 2 साल में हो जानी है हर घर में, और BRB कैनाल का पानी हमने ड्रिंकेबल बना दिया, तो फिर ये पानी ऊंचा भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और जाहिद साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने तज़किरा किया कि पानी की एक्यूमुलेशन तो उन इलाकों में जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर है। अच्छा, आप वैसे तो वासा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इस मामले पर आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो ये कराची की जहाँ बात है तो यहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं और यहाँ पर तो ज़्यादा सीवरेज का पानी एक्यूमुलेट होता है। तो यहाँ पर जो वाटर लेवल के हवाले से क्या लोग संजीदा हैं, क्या इक़दाम कुछ हो रहे हैं, आपके कुछ इल्म में है ऐसा कुछ? दरअसल मैं चूँकि एक और इदारे का सरबराह हूँ, पाकिस्तान वाटर ऑपरेटर्स नेटवर्क का चेयरमैन हूँ। उसमें पाकिस्तान के तमाम यूटिलिटीज आ जाती हैं, कराची से लेकर कोयटा और पूरे पहाड़ तक। अच्छा, 15 के 15 जो पानी के उठाने के इदारे, निकासी आपके इदारे। तो कराची में जो पिछले साल की बारिशें आपको याद होंगी तो वो सीवरेज का नहीं था, घरेलू सीवरेज या डोमेस्टिक, वो बारिशों का पानी था। जी जी, तो लेकिन मिक्स हो गया था। मिक्स हो गया था और हमें ये अब करना होगा कि एक तो ड्रेन्स को तो क्लियर करना ही होगा, काफी किया भी गया था, FWO ने और दीगर इदारों ने उनको ठीक किया। दूसरा, हमें पानी को स्टोरेज का काम करना पड़ेगा, चाहे वो रोड के नीचे क्यों ना हो या पार्कों में ना हो। ये क्योंकि जो सडन बारिश होती है और लोगों के घरों में पानी जाते हैं, उसमें जो लॉस कोलेट्रल होता है वो ज्यादा होता है। अगर उस पानी को आप स्टोर कर लें तो वो कम से कम लोगों की लाइफ मुतासर ना हो। बिल्कुल जी, हाँ, और लोगों को भी यहाँ पर अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पानी सबसे ऊपर आता है, जो कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में आता है। सर बहुत शुक्रिया जी। MD वासा सैयद ज़ाहिद हमारे साथ मौजूद। खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं आप ज़्यादा दिन तक, पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। सर्वाइवल के लिए कोई भी स्पीशीज, सांस के बाद पानी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और पानी के लिए हम बता चुके हैं कि उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं नहीं जी हमें पता है जी H2O का फॉर्मूला क्या, तो नहीं जनाब, उससे नहीं, इतने बड़े पैमाने पे पानी नहीं बनाया जा सकता। सो इसको प्रिजर्व करना आपकी और मेरी बहैसियत शहरी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब आपको बताएं जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को ये हिदायत की है कि कराची सर्कुलर रेलवे के रूट्स में जितने भी अंडरपासेस और जितने भी ओवरहेड ब्रिजेस आ रहे हैं और जो अभी भी जेर तामीर हैं, उनको 1 महीने के अंदर, डेडलाइन उनको दे दी गई है कि इसको 1 महीने में कंप्लीट करें। और जनाब इस हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है, डेडलाइन पर कितना अमल किया गया, कोई काम शुरू हुआ या नहीं हुआ, वो हमें बताएंगे असगर उमर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे में बहुत इंटरेस्ट ले रही है और उन्होंने हुकूमत सिंध को हुक्म दिया है कि चूँकि ये एक सर्कुलर का जो मंसूबा है ये कराची के रिहायशी इलाकों से गुजरता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर अंडर पासेज और ओवरहेड पुल बनाए जाएं। लेकिन इस सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को वो ताबून नहीं मिल रहा है। जैसा अलादीन पार्क वगैरह में इंतजामिया ने फौरी क्विक रिस्पॉन्स दिया, बार बार हुक्म देने के बावजूद आज एक बार फिर कहा गया है कि 1 महीने में इस बारे में रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये वो मुकामात हैं जहाँ अभी तक साइट के मार्क नहीं किया गया है कि ये कहाँ काम शुरू होगा। हम ये देख रहे हैं कि गुलशन इकबाल 13D पे ट्रांसपोर्ट ये जा रही है। इसके अलावा नीपा के पास, उर्दू यूनिवर्सिटी के पास भी हमने देखा कि रेलवे लाइन दब चुकी है। ये कराची सर्कल रेलवे को कैसे बहाल किया जाएगा, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त हम नाज़माबाद पे खड़े हैं जहाँ पर कराची सर्कुलर रेलवे की जो ट्रैक था वो गायब कर दिया गया है और यहाँ पर
ग्रीन लाइन का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कि ना कि सर्कुलर रेलवे का मंसूबा मुकम्मल हो रहा है और ना ग्रीन लाइन का मंसूबा यहाँ शुरू हुआ है। और कराची के लोग परेशान है कि उनके शहर के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी वो काम तो ज़रूर करती है जिसमें शहरियों के लिए मुश्किलात हों, शहरियों को बेदखल किया जाए, कोई तोड़ फोड़ की जाए, लेकिन जो तामीर का मंसूबा है और यहाँ के जो कराची की तरक्की का मंसूबा है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। और कराची के तमाम शहरियों की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की आइंदा पेशी पर है कि किस तरीके से कराची सर्कल रेलवे के ऊपर क्या पेश रफ्त होती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर मजीद क्या कार्रवाई करती है। जी चलें जी, रिपोर्ट कर दिया हमें असगर उमर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बचपन में सुना करते थे ना कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक ही जाना क्यों ना पड़े, लेकिन अब जो ताज़ा मिसाल हमारे सामने आई है वो ये कि अपनी फ़र्ज़ की अदायगी करो चाहे तुम्हें दरिया ही पार करना क्यों ना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं, यानी कि जो मुल्क से पोलियो के ख़ात्मे के लिए सरगर्म हैं और जो टीमें हुकूमत की जानिब से तश्कील दी जाती हैं, तो ज़ाहिर है कि वो कई दफ़ा बहाने भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये मिसालें देखी हैं कि भले बर्फ़ पार करके जाना पड़े, भले दरिया पार करके जाना पड़े, और इतने ज़्यादा उनको इंसेंटिव्स भी नहीं दिए जाते, लेकिन उसके बावजूद कुछ जान को खतरा अलहदा है। जी, जान को खतरा अलहदा है। और हमारे जनाब ये पोलियो वर्कर हैं आसिफ रज़ाक, उनकी एक वीडियो आई है सोशल मीडिया पर, वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से दरिया पार करके जा रहे हैं और जो बच्चे हैं उनको पोलियो से बचाए के कतरे भी पिला रहे हैं। बिल्कुल, जिनसे मुलाकात की है हमारे रिपोर्टर ताहिर खान ने, उनके साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, तो ओवर टू यू ताहिर। पोलियो कैंपेन के हवाले से सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो है जिसमें एक पोलियो वर्कर दरिया क्रॉस करते हुए देखा जा सकता है। ये पोलियो वर्कर कौन है, हम आपकी बात कराते हैं। भाईजान, आपको कहीं देखा देखा सा लगता है ये बैग से समेत, आजकल आप सोशल मीडिया पे वायरल हैं, क्या चीज़ है वो? सर, मसला ये है कि मैं हेल्थ में सुपरवाइज़र हूँ। आप पोलियो वर्कर नहीं है? नहीं, मैं पोलियो वर्कर नहीं हूँ, सुपरवाइज़र हूँ, हेल्थ सुपरवाइज़र। वहाँ दरिया किनारे मेरी टीम काम करती है, वहाँ पोलियो के कतरे पिलाती है। मैं वहाँ उनको चेक करने गया तो उन्होंने कहा कि हम दरिया के पार नहीं जा सकते। वहाँ पर तकरीबन 50 बच्चे थे जिनको कतरे पिलाने थे, वो नहीं गए, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं दरिया से कूद कर गया, उनको कतरे पिलाकर फिर वापस आ गया। रज़ाक साहब की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए 2 बूंद कतरे पिलाने के लिए इस जगह पर जाते हैं। वीडियो बहुत वायरल हुई, किसी ने कोई राब्ता भी किया आपसे सरकारी सतह पर? नहीं, मुझसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया है। मेरी वीडियो वैसे मैंने फेसबुक पर देखी थी कि वायरल हो चुकी है, किसी अफसर ने, किसी ने मुझसे राब्ता लोगों ने तो बहुत देखी होगी राब्ता किया। नहीं, लोगों ने राब्ता किया है, मुझे कमेंट्स भी दिए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं, लेकिन मेरे किसी ऑफिसर ने मुझे कोई कमेंट्स या लाइक नहीं किया। तकरीबन मुझे 10-12 साल हो गए मैं वहाँ जाता हूँ। ये पहली दफ़ा किसी ने, मैं जाते हुए किसी ने मेरी वीडियो बना ली और वो वायरल हो गई। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी किसी ने वीडियो बनाई है, मुझे नहीं पता। मैं 10 साल से वहाँ जा रहा हूँ, तो ऐसे ही जाता हूँ, दरिया क्रॉस करके उन बच्चों को कतरे पिलाता हूँ मैं। रज़ाक साहब, आपकी हिम्मत को बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है बहुत सारे सरकारी सतह पर भी आपको अभी देखा जा रहा होगा और आपकी हौसला अफजाई भी की जाएगी। ये वो रज़ाक साहब हैं जो हमारे बच्चों के लिए हर 2-3 माह बाद, जिनकी ड्यूटी ना होने के बावजूद वो जाते हैं और 5 दिन तक इसी तरह पोलियो कैंपेन दरिया को अबूर करके करते हैं बगैर किसी इंतजामात के। सरकारी सतह पर इनके लिए इंतजामात भी होने चाहिए, क्योंकि जिनकी वहाँ ड्यूटी है उन्हें वहाँ पर उसको परफॉर्म भी करना है। अब आप सोचें, इनको तो तैराकी आती है, लेकिन यहाँ पर कश्ती का होना तो जरूरी है ना। अपनी जान, खुदा ना खास्ता कभी कैसी प्रॉब्लम हो जाए तो अपनी जान देखें ना, दरिया का बहाव तेज हो। बहुत से रीजंस हो सकते हैं, कोई मतलब तो ख्याल करना चाहिए बहरहाल, लेकिन एक जो जज्बा है अब वो मौजूद है और जज्बा ज़ाहिर रखना चाहिए और मुल्क से पोलियो का खात्मा इसी तरह से मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल जी। और यहाँ पर जनाब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोविड से बहुत दूर रहेगा और बच्चों पेपर्स देने ही देने। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।